آئے گا. بہت سے دوست ایسے ہیں جو ایم ٹی اے میں کام کرتے تھے جنہوں نے مجھے بتایا تھا اس چیز کا کہ مرزا طاہر کے دور میں ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا تھا کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی, آبزرو کرنی تھی, ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ چل رہا ہے, اور انہوں نے لڑکے بہت سی چیزیں شواہد ملے تھے ایم ٹی اے کے آفس سے, انہیں شکایتیں بھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار ضرور کیا تھا لیکن اس کو برطرف نہیں کیا کبھی بھی, کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے برطرف کرنے میں بہت سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں نا, جیسے محمود شاہ کے ساتھ بہت سے مفادات ہیں, تو اس لیے وہ ایسے جو ہوتے ہیں نا اوپر سے ایپسٹین ان کو برطرف نہیں کرتے, پھر وہ ادھر سے ادھر ان کی ہٹا دیتے ہیں, ان کی جگہ ہلا دیتے ہیں تاکہ جو شور پڑا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے, اور اس کے بعد پھر واپس کر دیتے ہیں انہیں. تو یہ پرانا وارداتی تھا یہ ان کے گھر کا, اور ان کو پتا تھا سب کو کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ خاموش تھے. جب مرزا طاہر کی وفات ہوئی ہے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ فائزہ گئی ہے پاکستان, اپنی کوئی پراپرٹی انہوں نے بیچنی تھی, تو اس میں اس کے ساتھ شینڈی شاہ تھا, یہ دونوں گئے تھے, اور مری کے پاس انہوں نے کوئی ہوٹل میں رہائش بھی کی تھی, وہاں لے کے کمرہ. وہاں پہ آپ کو اخبار میں بھی خبر نظر آئے گی کہ انہوں نے باقاعدہ چھاپی تھی خبر کہ یہ مرزا طاہر کی بیٹی آئی ہے اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ذرا ریپیٹ کر دیں, کس نے رہائش وہاں پہ رکھی؟ یہ شینڈی شاہ اور فائزہ, یہ دونوں گئے تھے مرزا طاہر کی وفات کے بعد. ان کی پراپرٹیز جو تھی نا آبائی جو ان کی جائیداد, اس زمانے میں اس کی طلاق فوراً اس نے دائر کی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے طلاق فوراً دائر کریں تو آپ کے نام پہ جتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ میٹرنلی لائک ایک دوسرے میں ڈویژن ہوتی ہے نا, کہ آپ جتنی بھی ہے, ہاں تو وہ اس طرح انہوں نے جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے جو بھی ان کے معاملات تھے, تو وہ یہ گئی تھی پاکستان, فوراً چکر لگائی تھی, اور ساتھ شینڈی شاہ تھا, اور یہ وہاں پہ ان کی رہائش جو تھی وہ مری کے پاس ہوٹل میں تھی, اور اس کی باقاعدہ خبریں بھی آئی تھیں. انہوں نے پھر جماعت نے, کیونکہ ایسی خبریں جو ہے انٹرنل جماعت میں نہیں پہنچتی, باہر والے جتنا بھی شور مچاتے رہیں جماعت والے تو باہر کی خبریں پڑھتے ہی نہیں نا, کیونکہ باہر تو دشمن ہے ہمارے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, آپ لوگ ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اسکرین بڑی کریں میری, ایسے شخص کے بارے میں جس کے چہرے پہ یہ نور ہے, آپ دیکھیں تو صحیح. بالکل, ہم شیطانی لوگ, ہمیں تو پتہ ظاہر ہے ہم تو ہیں شیطانی خیالات کے, بگڑے ہوئے اجڑے ہوئے, ہم برباد لوگ, ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں, مرتد ہوئے ہیں. وہ تو دیکھیں, آپ اس کی فرینچ کٹ دیکھیں, آپ فلٹر لگا لیں, آپ کو اس سے زیادہ نور ملے گا. میں کہتا ہوں آپ اس کی کیپ دیکھیں جس پہ وہ مربی کیپ, میں کہتا ہوں جب یہ آتا ہوگا چلتا ہوا, جب پیچھے نظم چلتی ہوگی خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا ہے جی, مجھے بتائے گا کہ کیا ہوتا ہوگا نظارہ اس ٹائم. آپ کو میں ایک اور بھی میں بات بتاؤں, شینڈی شاہ ہے اور کون ہے, میں آپ کو ایک اور بھی بات واقعہ ہٹاؤ بدتمیز خبیث گندا, آپ کو ایک اور بھی واقعہ سناتی ہوں, نہیں آپ انجوائے کریں گے. ایک اور واقعہ سناؤں, آپ کو یاد ہوگا کافی برس پہلے ان کا جو انگلینڈ سے ایک پروگرام چلتا تھا کوپ کا, اس میں اس کا نام جہاں سے شینڈی شاہ پڑا تھا اس کی وجہ تھی کہ یہ پکڑا گیا تھا ہائی وے کے اوپر. نصیر شاہ انہوں نے باقاعدہ پروگرام چلاتے ہیں نا پولیس والے, آر سی ایم پی والے ہائی وے پہ جس کو ڈرنک ڈرائیونگ میں پکڑتے ہیں, تو وہ ان کے پروگرام چلتے تھے کہ یہ آپ کا پروگرام تھا, اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ آن دی ایئر آ گیا نا تو انہوں نے دکھایا ہے کلیئر کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا لائسنس دکھایا ہے, نصیر شاہ ہے, اور وہ لوگوں نے اس کی گاڑی اور پہچانی. اس کی گاڑی کے ٹرنک میں سے بہت سے, یہ فل ٹن تھا, اور اس کی گاڑی کے ٹرنک میں سے بہت سی شینڈی نکلی تھی نا, تو اس لیے انہوں نے ڈرنک ڈرائیونگ میں اس کو چارج بھی لگایا تھا, اور جس کی وجہ سے اس کا نام شینڈی شاہ پڑا تھا وہاں سے نا. اور یہ اس زمانے میں آپ بھی بہت ہی لا علم ہے نا, آپ معصومیت آپ کی بات میں دیکھیں گے. تو وہ جو اس وقت جب یہ ہوا نا پروگرام, اس زمانے میں اخبار میں لکھتی تھی, ہماری اخباریں یہاں سے ساری کالم نویس, تو ہمارے اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا, یہ ای میلز وغیرہ کے چلتے تھے, تو جماعت کی بہت سی ای میل فورمز تھے, وہاں سے کالم وغیرہ سرکولیٹ ہوتے تھے. تو میں نے وہاں پہ جس دن وہ دیکھا میں نے یہ پروگرام اس کا تو میں نے نا فوراً ہی لکھ دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب نصیر شاہ جو ہے اتنا جماعت کا اہم نام, چیئرمین آف ایم ٹی اے, اور وہ جو ہے مطلب آج
इंग्लैंड की इस तरह प्रोग्राम में आया है, कॉप के पकड़ा गया, चार्ज हुए हैं और उसकी इतना ड्रग ड्राइविंग करते हुए। तो वो आगे से ना जो हमारे बड़े अहम एक थे, यहाँ पे पीस में एक रसाला चलता था, उसके एडिटर थे नसीर शाह साहब, वो जमात के बड़े मोतक़िद अभी भी हैं। वो ना आगे फौरन कहते हैं आके, देखें जी देखें, बात मत करें, वहाँ लजनात भी थी, वो देखें देखें तो इस्तग़फ़ार, आप बात ही ना करें ना, देखें ऐसी बात नहीं करते, बस ऐसी चीज़ों की अल्लाह मियाँ पर्दा पोशी का हुक्म फरमाता है, आप बस करें, हो गया। अच्छा, वो जो नसीर शाह साहब थे वो इंटरनली मेरे पास अलग से इनबॉक्स में आए और मुझे कहते हैं, देखें आपने ये आज बात तो कर दी पब्लिकली, आप दोबारा मत कीजिएगा, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाता है ऐसी बात सवाल करने से, ऐसी चीज़ों से। आपको नहीं पता इनके घर के हालात क्या हैं, आखिर क्या मजबूरियां हैं जो इन लोगों ने यहाँ तक नौबत आई। मैं तो जानता हूँ इनको, इनकी वाइफ इतनी ज़्यादा बदकिरदार और इतनी बिगड़ी हुई है, बद इखलाक है, बदजुबान है और बिल्कुल मुनक्चड़ी है। पैसा इनके पास इतना ज़्यादा आ गया है, पैसे हर वक्त शॉपिंगें करनी, बच्चे बिगड़ गए पैसे से। जब जिस बंदे के बच्चे और बीवी सब बिगड़ जाए पैसों से, वो बेचारा अब ये भी ना तो क्या करे। अब उन्होंने अपने, मानता हूँ गलत किया, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे गम को गलत करने के लिए जैसे पी लिया। तो मैंने ना उनका ये जवाब सुन के तो मैंने बड़े आराम से उन्हें कहा कि दीप मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, आपने अच्छा ये जवाब दिया है, मुझे सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा ये आप दरख्वास्त पहुंचा दें ऊपर जमात के जो नाज़िम को, निज़ाम जमात को, कि ये वाली जो आपने ऑप्शन दी है ना कि शराब पी के गम गलत करने वाली, ये आप बराहे करम औरतों के लिए भी ओपन कीजिए, ताकि आपका मोरे आमा का सेक्शन सारा ठप हो जाए। वहाँ पे 4 आप लोगों ने काजी 5 बैठाए हुए हैं, बुढ़े खोसट, और लोग सुनते कुछ नहीं है। मोरे आमा में ढेर लगे हैं औरतों के घरों के मसाइल के, तो उनको भी एक एक शैंडी पकड़ाएं औरतों को, उनको के पिए, अपना गम गलत करें, छोड़ें परे केस सारे। तो वहाँ क्यों नहीं ये चलता ये वाला केस, ये आपका मतलब वहाँ जवाब नहीं चलता, लेकिन मर्दों के मामले में औरतें भी बदकिरदार हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, पैसा आ गया, तो इसलिए उसको इजाजत मिल गई है कि वो जो मर्जी माजरत में आपको टोक रहा हूँ। असल में आप लोगों का सिर्फ मेरे इशू जो मुझे लग रहा है ना, आप है, सफिया साहिबा है, बिलाल साहब बैठे हैं, सबका जो इशू मुझे लग रहा है, देखिए मैं तो हो गया हूँ मोम। जब से मैंने ये फोटो देखी है मैं मोम हो चुका हूँ, मैं पिघल गया, सीधी सी बात है। मैं इसके ऊपर मजीद कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अब सब लोग इस फोटो को देखें एक दफा प्यार से, ये फोटो की तरफ देखें और ये सुने। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ले मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है, तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है, तेरे बस मारो मुझे, मारो नहीं होगा बर्दाश्त। एक तालिब तेरा सर ही खुद सरे तूर है। अब आप लोगों ने की ना खिलाफ, इसके बाद मैं तो नहीं, अब मैं भी आपकी कायल हो गई हूँ। अब आप ऐसे करें, अगला गाना वाला इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, वो आगे लगाएगा। अल्लाह यार ये मैं इस बंदे को और इसकी आवाज सुने, अगर लिटरली, अब आप शायद आपने सुना होगा ये जो भी बात कर रहा था, वो डर्टी टॉक और हंस कैसे रहा था। I mean, सच में ना, मैं तो डायरेक्ट देखा है, मैंने बात की हुई है, मैं डायरेक्ट देखा है, मेरी मुलाकात हुई है, मैं आमना सामना। हाँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैं तो जानती हूँ इन सबको। मैं आप किसका नाम ले, तो मैं तो डायरेक्ट जानती हूँ इन लोगों को। आप मुझसे, इसीलिए तो मुझ पे ये असर नहीं होती इनकी चीजें, कि ये जो नजर आते हैं वो है नहीं है। मैं क्यों इस लेवल तक आई हूँ इन चीजों को समझने में। मैं बड़े करीब से इनके किरदार देखे हैं मैंने, बहुत करीब से। मैंने सर्च कर लिया, शैंडी ना एक शराब होती है, तो एक, लेकिन वो विदाउट अल्कोहल भी होती है, 2 किस्म की होती हैं शैंडियाँ।
हो सकता है ये विदाउट लेकिन अल्कोहल शहंशाह हो। नहीं, इनको दीन की शैंडी थी इनके ऊपर चढ़ी हुई, जो फुल टून थे, और पुलिस ने ड्रंक ड्राइविंग के चार्ज लगाए थे। ये बगैर अल्कोहल वाली तो बहरहाल नहीं थी, वो ड्रंक चार्जेस लगे थे। सस्पेंशन हुई थी, सस्पेंशन। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। हाँ, तो फिर वो बेहतर है, फिर उनके कदमों में गिर जाए। थोड़ा सा पीछे करके लगाइए, ओ माय गॉड, थोड़ा पीछे करके लगाएं, चुप करें, थोड़ा सा पीछे करो। और मुझे वो बताए, मुझे ये कहे, मुझे वो नहीं यार। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, she was totally different than you. You know why? She never insisted कि मुझे ये बताए, मुझे वो बताए, मुझे ये कहे, मुझे वो कहे। मुझे कभी कभी तो मार्जिन कर दिया करे मेरे हालात का। हाँ, तो इसमें मैं तुम्हें एक आदत बता रहा हूँ, उसमें तुम अब हालात को ले आते हो। तो फिर वो बेहतर है, फिर उनके कदमों में गिर जाए। oh my God, उससे प्यार करते हैं, मेरे से नहीं करते। नहीं यार, नहीं करते मेरे से प्यार, ये मैंने लिखा है। कहाँ लिखा है? नहीं करते। कहाँ लिखा है? अरे जो मैंने लिखा है, इतना दर्दनाक किस्म का मैसेज। जो मैंने कहा पता नहीं अपने नोट्स में ना आ रही। आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते? ट्रस्ट तो करता हूँ, ट्रस्ट तो करता हूँ। I don't think you will ever harm. I love you, amigo. मैंने कहा I don't think you will ever harm me. जैसे मुझे उल्टी आती है। नहीं, why would I harm you? Why would I harm anyone? No, in the sense कि बाकियों सबको भी तो एक्सपोज कर रही हो ना तुम। वो टोटली डिफरेंट है। आप बाबा हैं, आप चचा बच्चा हैं, हम मोचा हैं। मुझे लिटरली लग रहा है मुझे उल्टी आ जाएगी। वो देखे, अगर उसने वो देखे उसका पॉइंट भी समझे ना, मैं तो हो चुका हूँ मोम। अब ये वो थोड़ी सी जो पी है ताकत नहीं डाला, तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। ये समझे इस बात को, उसने पी लिए थोड़ी। पीने से बात बहुत आगे चली गई है। एक बेटी अपनी माँ के, ये क्या रिश्ता बना हुआ है, ये क्या? ये एक लाइटर बोर्ड तो खैर अहमदियों को सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन अल्लाह माफ करे यार, ये बहुत जुल्म है। ये आप समझो कि इस घिनौने इंसान ने, जिसकी फोटो सामने है, इस बदकार बेगैरत इंसान ने, आप देखो कि ये एहसान फरामोशी भी है ना, इसकी औकात थी कि ये कई महल्ले की किसी गटर का भी चेयरमैन बन जाता कहीं पर जाके। इसकी शक्ल है कहीं पर बनने की। खानदान के साथ ताल्लुक होना तो उनके स्पर्म का कहीं ना कहीं असर होता है। उसकी शक्ल भी थी, अकल भी थी, उसको मिल जाना था, क्योंकि ये खानदान से ताल्लुक बहुत बड़ी चीज है। जो भी खानदान के करीब करीब होगा ना, तो उसको असर हो जाता है। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, असल तो उसकी वजह से मिला ना, लेकिन बदला देखिए है ना सारी। बिल्कुल। ठीक है, आपने जो पिक्चर लगाई है, हाँ जी, ये जायदा आप करें। ओल्ड पिक्चर है बहुत ज्यादा। जी जायदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रही थी तो मुझे ले लिया ऊपर किसी ने। बहरहाल पता नहीं, शायद आपको पता है मेरे बारे में किसी को या नहीं, इल्म है या नहीं। बहरहाल मैंने भी जमात छोड़ी हुई है, काफी अरसा हो गया। जाहिदा, आपको कौन नहीं जानता जाहिदा? जी अफाफ, देखा मैं आपकी बातें सुन रही थी, फिर मैं इसलिए रुक गई थी यहाँ ना। मैंने देखा अफाफ आई हुई है, इसलिए फिर मैं सुनना शुरू हो गई। तो बहरहाल मैं देख रही थी। कुछ कहेंगी जायदा?
अच्छा, जी oh my मुझे God, मुझे आप भी बहुत ज्यादा हैं। जमात से निकालने की बात हो रही थी ना कि फलां को निकाला या किसी को निकाला, ये जो भी इनके ऊपर मुझे जो भी मतलब ये हमारे सामने आए हैं ना मामलात, इनमें से किसी इंसान को जमात से नहीं निकाला, जबकि ये किसी को इसलिए जमात से निकाल देते हैं, किसी आम अहमदी को, कि उसने किसी दूसरे मजहब वाले से, मतलब कि किसी दूसरे फिरके वाले से शादी कर ली है, और शादी भी उसके पेरेंट्स ने खुद की है, इसलिए उसको जमात से निकाल दिया। और मतलब 10-10 साल तक अखराज रखते रहे हैं। मेरा इन्होंने अखराज किया था जब मिर्जा ताहिर अहमद अपनी बेटी के लिए कह रहे थे ना आके कि उसको खुला हो गई है, उसको उसकी तलाक हो गई है, तो कोई उनकी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसी वक्त जब उन्होंने ये खुतबा दिया था, उन्हीं दिनों में मिर्जा ताहिर ने मुझे जमात से निकाला था। मुझे उनका वो खुतबा आज भी याद आता है, और वो मेरे दिल के ऊपर छुरियों के जैसे लग रहा था कि किसी की बेटी के साथ आप ये जुल्म कर रहे हो, और अपनी बेटी के लिए आप आके कह रहे हो कि उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। तो पूरे 10 साल मैं उनको माफियों के खत लिखती रही, और पूरे 10 साल मैं रोती रही, क्योंकि मैं अहमदी थी उस वक्त, और मैं बहुत मुखलिस अहमदी थी, और पूरे 10 साल मैं रोती रही, कोई जवाब नहीं आता था। वाह। 10 साल के बाद फिर उन्होंने ये जो 10 लफ्ज है साल ना के बाद मुखलिस फिर अहमद, जब ये खलीफा आए हैं, फिर मेरी माफी हुई है। तो ये मुझे तो ऐसे अभी हम 14 जैसे महीने एक नॉर्मल दिन लोगों हुए के हैं। साथ तो ये इतने जुल्म करते हैं कि मतलब इंसान उफ कर उठता है कि होता क्या है, ये क्या इंसान है ये, किसी को बात नहीं करने देते। इन्होंने ये कह दिया हुआ था कि कोई जमात के सारे लोगों से कि कोई ताल्लुक नहीं रखे। तो ये हरकतें थी इनकी। बहन माजरत मैंने आपसे, छोड़ दिया फिर खुद ही जमात। माजरत आपसे फर्स्ट टाइम हमारी बात हो रही है, तो जी। हम भी नए लोग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा जी सा अगर आप बता सकें मुझे, क्योंकि आपका नहीं आइडिया ज्यादा, आपका इखराज किस बात पे हुआ, या क्या मसला क्या हुआ था आपका? मसला बस कोई मसला नहीं था। मेरी शादी हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने खुद मेरी शादी की थी, मेरे वालिद साहब ने ना, मतलब हम मेरे कजन थे ये, मेरी अम्मी के भांजे थे, यानी कि मेरी खाला के घर मेरी शादी हुई थी। तो मेरी अम्मी अब्बू ने खुद शादी की थी, लेकिन अहमदी नहीं थे चूंकि ये, तो इस वजह से पाकिस्तान में कोई मसला नहीं हुआ। जब मैं जर्मनी आई हूँ तो मुझे जमात से निकाल दिया है कि मतलब केस जो किया था मैंने यहाँ पे आके इसलिए निकाला कि तुम्हारी शादी गैर अहमदियों में हुई है, और मौलवी ने निकाह पढ़ाया जो कि गैर अहमदी था। इस बेस पे मुझे जमात से निकाल दिया। तो फिर वो 10 साल, एक तो ये कि मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि क्योंकि मेरा जमात के साथ ज्यादा लिंक नहीं रहा, इसलिए कि शादी से पहले तो जाहिर है इंसान बच्चा ही होता है, एक किस्म की मैं बच्ची थी। फौरन ही मेरी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, मतलब मैं बीए में पढ़ रही थी अभी, तो मेरी शादी हो गई थी ना। तो इतना नहीं हमारा आना जाना होता था जमात में, क्योंकि काफी दूर दूर थे अहमदी घराने वगैरह ना। तो उसके बाद फिर शादी के 10 साल बाद मेरा ससुराल गैर अहमदी था, मैं नहीं गई जमात में ज्यादा। इसके बाद मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे निकाल दिया गया, 10 साल वो भी नहीं गई। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरा जमात से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। तो ये है शुक्र कि करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जी जी, क्योंकि जी। इस निजाम के अंदर किसी की बहन बेटी की ना मैंने तो इसी तरह जबरदस्ती का अपने दरिंदा बच्चों जो को है, लगाया हुआ था। हाँ, मैं जबरदस्ती करती थी अपने बच्चों के साथ। जब मैंने ये बच्चों से कहा कि मैं अब अहमदी नहीं हूँ, तो यकीन करें इतना मेरे बच्चे खुश हुए ना मुझे यकीन नहीं आया कि ये बच्चे मुझे कल कह रहे थे कि हाँ हाँ हम अहमदी हैं, और फिर एकदम से कहते नहीं नहीं मामा, हम तो बस आपकी वजह से कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। ये देखें जी, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, ये आप दुआ मांगते हुए, आपको याद होगा मैंने एक बात सवाल पूछा था, क्या ये भी जब दुआ मांगता है तो हाथ जोड़ लेता है ऐसे करके इकट्ठे, मिर्जा मसरूर साहब की कॉपी में, और वो जो अहमदी तरीका है, स्टाइल है दुआ मांगने का, आप देख रहे हैं उसके ये अक्सर सुना है कि नहीं, मतलब हाथ उठा के दुआ मांग
अपने को ये बुरा समझते हैं, पता नहीं क्यों। जी जी जी, आंखों के ऊपर रख लेते हैं, वो शर्म आ रही होती है ना अल्लाह के सामने किस मुंह से हाँ, जाना। ऐसे समझते हैं ये। हाँ जी, तो अल्लाह से भी जबकि शर्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो नमाज के अंदर भी दुआ मांगती थी, नमाज के बाद भी हाथ उठा के दुआ मांगती थी, और अभी भी जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो अभी भी ऐसे ही है, मेरा कुछ फर्क नहीं अच्छा, पड़ा। मैं एक बात करना चाहता हूँ शिकर भाई, जी बहन, ये जो आपने एक वर्ड बोला है ना, मुखलिस अहमदी, जी, ये मुखलिस अहमदी को डिफाइन तो करें थोड़ा सा, क्या होता है एक मुखलिस मतलब मुखलिस ये होता है कि इंसान दिल से अहमदी है। इंडिया? मैं दिल से बहुत पक्की अहमदी थी। अहमदी बिल्कुल। मुसलमान ही अपने आप को कहते थे ना। ये मुखलिस अहमदी जितने भी होते हैं, इनके साथ ही क्यों ऐसा होता है? इनके मैं साथ आपको ही होता है बस। मैं बताता हूँ, ये जितने भी मुखलिस अहमदी, मैंने जितने भी अभी तक शिकर भाई, जितने भी मैंने वाक़यात अब तक सुने ना, अब तक मुखलिस अहमदी के सुने, किसी तेज अहमदी के, शातिर अहमदी के वाक़यात मैंने इस तरह के नहीं सुने। हमेशा मैंने मुखलिस अहमदी के साथ इस तरह के वाक़यात होते देखे हैं, जैसे कि आपने भी बताया। ये जो मुखलिस अहमदी होते हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि वो कोलू का बैल है कि जिसको ये जब तक चाहते हैं इस्तेमाल कर लेती है, जब बूढ़ा हो जाता है तो किसाई की तरह इसको मेरे भाई, वो इसलिए होता है क्योंकि खलूस अहमदी अपना खलूस समझते हैं अल्लाह के लिए। ये अल्लाह का निजाम नहीं है ना। अल्लाह का निजाम होता तो इनका खलूस जो है वो किसी काम आता, इनकी मुखलिस ये जो है किसी काम आ जाता। ये तो निजाम है शैंडी शाह का, ये तो निजाम है महमूद शाह का, मिर्जा लुकमान का, ये तो इनका निजाम है ना, करप्ट लोगों का निजाम है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये अभी भी MTA वगैरह पे आते हैं? अब का तो मुझे नहीं, लेकिन ये कि खराज नहीं हुआ। इनकी कुछ नज़में हैं, वो मैंने देखी यूट्यूब के ऊपर, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह। और इस वीडियो के बाद इनका अखराज नहीं हुआ। और जो जाहिदा बात बता रही हैं, ये मैंने स्टोरी पहले भी सुनी हुई है। माजरत बहन, मैं आपको टोक रहा हूँ, माजरत। आप लोग असल में ना, मैं आपसे क्या कहूँ, ये मैंने इनहेंस करके उसको कहा है, मैंने चैट जीपीटी को, कि इसके चेहरे पर नूर, ये आप देखें, आप चेक करें फोटो, क्लैरिटी देखें। अब आपका दिल सबका मौम होगा। नहीं आ रही, पहले आ रही थी अगर, लेकिन इसकी आवाज सुनकर और जिस तरह ये हंस रहा है अपनी बेटी की उम्र की, जिसकी माँ के साथ भी ये कर चुका है सब कुछ, घिन आ रही है। आप ये देखें, ये जो बात आपने की ना माँ बेटी वाली, ये अल्फाज फायजा बीबी के, यकीन करें ये जब तक अहमदियत के हवाले से इस तरह की ये बात होती रहेगी ना, उसके अल्फाज जो है ना, ये याद रखे जाएंगे। उसने कहा था कि मुल्हिदों के घर में भी वो काम नहीं होते जो हमारे घरों में होते, और ये मिसाल आपके सामने है। आप ये देखें कि कुरान में पढ़ते हैं कि पर्दा किससे जायज नहीं है। एक बाप का अपनी बेटी से पर्दा नहीं है। अब और दूसरे रिश्ते, चचा ताया के, इन्होंने उन रिश्तों का एहतराम नहीं रखा। बहन, बात पता है क्या है, इंसान सबसे ज्यादा जो खुद को सेफ फील करता है ना, वो अपने घर में आके फील करता है। जी बिल्कुल। बिलाल भाई, आपके पीछे एक मिनट थोड़ा चल रहा, जरा उठ रही हो। वो मेरे दिमाग में चल रहा है। सबसे ज्यादा इंसान खुद को सेफ फील करता है अपने घर में। बाहर कहीं पर वो इधर उधर कहता है यार चलो मैं घर पहुंच गया। जब सफर करता है, मैं घर पहुंचने वाला हूं, घर पहुंच गया। जब वो घर के अंदर ही दरिंदा बैठकर, अब देखो ना, मिर्जा लुकमान जो है, आप इसको इजी ना लें। मिर्जा लुकमान की आप फोटोज तो देखिए, मिर्जा ताहिर के साथ और बाकी मिर्जा नासिर के साथ, ये तो पोस्टर बॉय बनाया हुआ था। ये वो बंदा है जो कोट पहना रहा है जनाब, मिर्जा मसरूर साहब को कोट पहनाया जा रहा है, खिलाफत वाला। वो मिर्जा गुलाम अहमद का कोट पहनाया जा रहा है। खिलाफत की अंगूठी जो खलीफा बनते ही मिर्जा जो उनकी थी गुलाम अहमद की, वो खिलाफत की अंगूठी मिर्जा लुकमान ने पहनाई थी मिर्जा मसरूर। जी 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 बिल्कुल, मैं वो फोटो भी निकालता हूँ, बल्कि वो फोटो भी जो है ना, दिखाएं वो भी लगाते हैं जरा। अब वो बंदा 5 साल की बच्ची का रेप कर रहा है, मिर्जा नासिर का बेटा। खिलाफत कमेटी का मेंबर है, वो कमेटी जो खलीफा खुदा बनाता है, चुनती है। अल्लाह अकबर, खलीफा आप खुदा। ये देखें कि ये वही हाथ हैं और उन्हीं हाथों से वो अंगूठी पहना रहा और सबके सामने आ रहा। उसको खुद नहीं शर्म आ रही, उसे घिन नहीं आ रही अपने हाथों से, अपनी हरकतों से। इसकी एक वजह है, मैं एक मिनट जरा सी, इसकी एक वजह है। देखें, इन लोगों ने ये जितना कुछ भी किया है ना, इन्हें पता है कि इनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहना, उल्टा इनके फजाइल बयान किए जाएंगे। आप कभी भी किसी अहमदी रोड पे चले जाएं,
آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو معاملات ہوتا ہے، یہ میں ہوں سیکر بھائی، ہم مسلمان احمدی نہیں ہے، غیر احمدی، ہم ان کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، چاہے اس کی 2 فٹ کی داڑھی ہے چاہے 5 فٹ کی داڑھی ہے، ہم کہتے ہیں یہ خبیث کا بچہ ہے. کیوں؟ کوئی ظلم ہے، قرآن اس سے منع کرتا ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ان لوگوں کے پاس جائیں. اور یہ جو کیس آپ یہاں پہ آپ ان کے سامنے بات کر کے دیکھیں سر، آپ کے اوپر وہ تبرہ تولیں گے نا. صفیہ بہن جو ایکسپیرینس کر چکی ہیں، آفاف بہن کا نہیں ہے ایکسپیرینس اس حوالے سے، یہ ان کے فضائل بیان کریں گے اور کہیں گے جھوٹ ہے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دور کے اندر اب اخبار موبائلہ والے آمدے تھے، انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا تھا کہ ایک بچی کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا. اس دور کی بات ہے، ہم جی کہتے تھے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی ان کو دیکھیں گے نا یہ کام کرتے ہوئے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، ہمارے کان جھوٹ بول رہے ہیں. جب آپ نے ایک ایسی قوم بنا لی ہو، ایک ایسے زومبیز آپ نے تیار کر لیے ہوں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کے اندر کی غیرت مر جائے اور وہ ایک سسٹم کے اندر قید ہو جائے، تو سر پھر آپ جو مرضی کریں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کل جو صفیہ بیان میں نے پوسٹر لگایا ہوا تھا، اس میں ایک وہ عورت تھی، اس نے ایک تحریک آزادی غلاموں کو آزاد کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، جب ان کا نام بھول گیا ہے. اس عورت کے ساتھ کمپنی کے شکار اور ذہنی طور پر غلام ہیں. بلال یہ بھائی، نکلنا ہی نہیں چاہتے. جی بلال بھائی ذرا ایک بار دیجیے گا، یہ مجھے سارے موقع دے. جی احسن چٹھا صاحب آئے، جی احسن احمد چٹھا صاحب، جی السلام علیکم. موجود ہیں جی آپ احسن احمد چٹھا صاحب؟ ہاں جی السلام علیکم. بھائی اسلام. جی چٹھا صاحب آپ جماعت احمدیہ سے؟ ٹھیک ہو؟ چٹھا صاحب آپ جماعت احمدیہ سے ہیں؟ ہاں جی. کیا کہنا چاہیں گے جی؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو ویسے انہوں نے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں. ویسے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کیس چل رہا ہے آج ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے مرزا ناصر احمد کے ساتھ، جانتے ہیں آپ مرزا ناصر؟ السلام علیکم سسٹر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اور سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہاں جی سیکر صاحب، میں سمجھا آپ بات نہیں کر سکتے تو میں نے سوچا ذرا سلام دعا کر لوں. کرے. کافی دنوں سے نہیں ہوئی سسٹر صافیہ سے بات. کیسی ہیں آپ؟ موجود ہیں یا بزی ہیں کہیں؟ السلام علیکم راجہ. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. وسیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وسیم صاحب نہ کیا کرو بھائی جان، تسی میرے بزرگ ہو، وڈے ہو میرے بھائیاں دی طرح. نہیں چھوٹے بھائی ہو تسی، کوئی مسئلہ نہیں. بس چھوٹا بھائی کر کے یاد کریا کرو، دعا ہمیشہ دعاواں دے اندر یاد رکھیا کرو. جی کیوں نہیں، ہمیشہ. جی باقی بھی سب آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہوں لگتا ہے باجی کوثر باجی بھی بیزی نے. عفاف باجی دے نال گل کر لو تسی. عفاف باجی یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں راجہ صاحب. جی السلام علیکم. تھینک یو. کون سی آپ سلطنت کے مہاراجا ہیں؟ نہیں جی، ہم تو ادھر عام سے بندے ہیں، بس وہ پہچان کی بات ہوتی ہے، پتہ ہے پاکستانیوں کی. اوکے بس جی اچھا میں نے کہا میں محروم ہوں شاید اس سے تعارف سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے تو آپ کی جو پچھلا پروگرام ہوا تھا نا ادھر، اس کے تو میں نے کچھ کلپس بھی لگائے ہیں اپنی بروڈ پر. تھینک یو. اپنے ساری آئی ڈی پر میں نے لگائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی باتیں سن کر بڑا اچھا لگا اور بڑی مطلب ہے کہ آنکھیں کھولنے والی باتیں تھیں. آپ سن رہے تھے راجہ بھائی ابھی جو ریکارڈنگ لگا رہے تھے ہم لوگ؟ نہیں ابھی کہ میں نے نہیں سنی، میں اگلے دن کے پروگرام کی بات کر رہا. مجھے اٹھنا پڑا ریکارڈنگ پاز کر کے. ابھی جو ریکارڈنگ تھی نا اس میں کہتے ہیں نا گندی باتیں، اور اس قدر ابھی وہ چل رہی ہے.
अभी वो सुनते हैं आगे। मैं नीचे उतरती हूँ, जाहिद आ जाए। लीड भी चलाने दूंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने केस रखना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं। राजा साहब, कैसे? राजा साहब थोड़ा सा प्यार से देखें ना, थोड़ा सा बिल्कुल आप नहीं, निगाह बदले। वो कहना भी गलती से भी ना कहना, वो क्योंकि ये बंदे की मैं बात बताऊँ आपको, सारी सीधी करके देखें। बुग्स वाली ऐनक उतार कर देखो। बुक्स, जैसे उन्होंने कहा ना, मिर्जा साहब की किताबों को आप एक दफा प्यार की निगाह से देखें। आप एक दफा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच देखें उसकी। एक आम अहमदी के लिए ये इंस्पिरेशन है। आप उसकी वो ऊपर देखें, जना कैप देखें, आप उसका दुआ मांगने का तरीका देखें। अब इस टाइम ये दुआ मांग रहा है ना बैठ के वहां पे। अब मैं पीछे कुछ बैकग्राउंड में चलाता हूँ, उसके साथ इसको देखें, शायद आपका दिल भी मोम हो जाए मेरी तरह। सुने। दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है, साथ फौजों की कोई न यलगार है, इब्न मंसूर की एक ललकार है। हाँ जी, राजा साहब को फर्क पड़ा है? सर वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका वो चेहरा ही मखरू है। I'm sorry। राजा साहब, आपके एहसासात, जज्बात जो है ना मर चुके हैं। मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा सख्ती कम करें। राजा साहब देखें जी, बात ये है कि जमात अहमदिया के लोगों को राजा साहब असल में ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये शक्लें, ये जो जिना कैप, मुरब्बी वाली कैप, ये फ्रेंच कट और ये हाथ जोड़ने का तरीका दुआ मांगते हुए, खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों की इज्जतें इन बेगैरतों के सामने नीलाम ना करो। इन बेगैरतों के अंदर इस कदर बेगैरती का सॉफ्टवेयर फीड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। ये ना तुम्हारी माँ, ना बेटी, ना इवन के दादियां नानियां नहीं छोड़ेंगे, इस कदर बेगैरत लोग। सीकर साहब, इन्हीं के को मेंटेनेंस के लिए चंदे ये लोग दे रहे हैं। हाँ, ये जो मुंह पे इसने मेकअप किया हुआ है, ये भी किसी मलेशिया में बैठे हुए अहमदी जो जेल के अंदर से चंदा दे रहा है ना, ये उसकी कमाई का पैसा खा रहा है, ये हराम खोर। ये जो इससे फोटो में सामने लगा हुआ है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। जी जी जी। ये जो इस वक्त तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि MTA भी है, इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, जिस पे हम इकट्ठे बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत से उनमें से होते हैं लोग जो अकीदतमंदों में से ही कुछ की अकल भी खुल जाती है ना इन चीज़ें सुन के। तो लेकिन वो ज़माने भी थे जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मसाइल यही थे हूबहू। आप ये सोचें कि वहाँ उस वक़्त के लोग कैसे इन चीज़ों से गुजरे होंगे। मुझे यहाँ कनाडा आए 35 इयर्स हो गए हैं। मैं जब आई थी कोई 16-17 साल की एज थी, उसके बल्कि 16 इसी टाइम इस एज में वालिद साहब ने बुलाया था, इधर स्पॉन्सर किया था पूरी फैमिली को, पहले वो आए थे। अब जब हम 4 बहनें हैं, आप अंत सब मैं आपको बता रही हूँ बैकग्राउंड इस हिसाब से कि आपके जहन में हो कि मैं क्या कह रही हूँ, आपको पता हो। भाई कोई नहीं है, बहनें 4 हैं और हम जो है सबकी एज जो है यही है। सबसे छोटी 5 साल की थी, 4 या 5 की, बाकी सब मतलब इसी एज में। मुझसे मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मुझसे एक बड़ी थी, 1 साल बड़ी है, यानी एज ग्रुप भी अंदाज़ा लगा लें। और मेरी अम्मी टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, अब्बू आए हैं तो अम्मी टीचिंग करती थी। अब हमारा घर था बिल्कुल ईवान महमूद के सामने। आपने देखा होगा रेलवे चौक, जो यादगार चौक है ना, जहाँ दफ्तर इंसारुल्ला और जो ईवान महमूद है उसके बिल्कुल अपोजिट पे रोड क्रॉस करें, जहाँ गुलशन बेकरी और वो सारे उस ज़माने में होती थी। यादगार चौक, ये एक साइड पे चौधरी हमीदुल्ला का घर था जो वकील तबशीर थे। एक साइड पे हमारे जो सैयद सलाह इरशाद जो थे, सैयद अहमद अली शाह साहब, उनका घर था। ये हमारे हमसाए थे, उनके दरमियान में हमारा घर था। तो ये उस टाइम पे ये फ़ोन लगे थे नए नए, ये उस रब्बा में किसी किसी के घर में फ़ोन होते थे, और वो भी ये एक्सचेंज का सिस्टम नहीं होता, जो एक्सचेंज सिस्टम नंबर के थ्रू डायल करते थे। तो हम लोगों ने उस टाइम, अब्बू आए हैं जब यहाँ स्पॉन्सरशिप का चल रहा था एम्बेसी से, और उस सिलसिले में कॉल राब्ते करने पड़ते थे, तो हमें फ़ोन लगवाने पड़े। पहले घर में फ़ोन नहीं था तो सुकून था, लेकिन जब फ़ोन लगाया
تو एकदम ऐसे हुआ कि हम फ़ोन उठाए, फ़ोनों ऐसी फहश कॉलें आने लग गई। नंबरों का तो होता ही नहीं था कि नंबर कोई देख सकें, लेकिन इतनी नंगी और इतनी गंदी, ये शैंडी शाह की तो कुछ भी नहीं है ऑडियो। इससे भी जिसे आज के ज़माने में आप सेक्स टॉक कहते हैं ना, वो वाली वो ज़बान, इतनी नंगी बातें होती थी कि जब आप फ़ोन रख देते थे ना तो आपको धमकी दी जाती थी कि अगर फ़ोन रख दिया तो तुम्हारा फ़ोन कट जाएगा, और हकीकत में फ़ोन कट जाता था। और फिर आपको एक्सचेंज के चक्कर लगाने पड़ते थे लाइन बहाल करवाने के लिए, क्योंकि हमें तो राब्ते के लिए ज़रूरत थी फ़ोन की। अब या फिर हमें कहना, धमकियां देने कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें आपको इतना तंग करेंगे कि आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। और हमारे घर में उस ज़माने में 50-50 हज़ार के फ़ोन के बिल आए हुए हैं, जो अम्मी ने हफ्तों चक्कर लगाती थी एक्सचेंज में उसको दुरुस्त करवाने के लिए। जो चीज़ें लगती थी कि ये पूरा एक गैंग है, जो फ़ोन कर रहे हैं उनमें उनके एक्सचेंज के साथ भी ताल्लुकात हैं, जो मिल के उनकी मिली भगत से सब जो कहते हैं वही होता है। हमें मजबूर किया जाता है कि फ़ोन उठाएं, वो नंगी बातें सुने। अब हम मजबूर, जब तंग आ गए इन चीज़ों से, इन बातों से, हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए रोकने के, तो फिर मैं उस ज़माने में होते थे ये क्या उनका नाम है, नाम ज़हन से निकल रहा है, अजीज़ करके, जो अमूरी अजीज भामड़ी साहब, नहीं अजीज़ भामड़ी नहीं, उनके बाद जो आए थे ना, इनका एक और नाम मेरे ज़हन में था, वो निकल गया उनका नाम। वो अमूरी आमा के थे, वो उनको मैंने ख़त लिखा, क्योंकि जमात में तो ये सिलसिला यही चलता है कि वहाँ पे आपको जमात रब्बा में तो कोई बाहर कंप्लेन नहीं कर सकते थे आप, तो जमात को ही बताना पड़ता था। और सदर महल्ले में रहते हो हम, हमारे सामने क्वार्टर हैं सारे तहरीक जदीद के, और सारे मुरब्बियान के घर हैं ना, सदर महल्ला भी साथ ही हमारे, मतलब आप हमारे पास ही सारे थे, मिर्ज़ा ख़ानदान के घर भी करीबी अगले महल्ले में। तो ये उस मोहल्ले में जहाँ 24/7 पहरा चल रहा है, पहरेदारी मतलब आपको तमाम वो एरिया रात को पहरे में होता था, लेकिन जो खुदाम देते थे ड्यूटियाँ ना, उस ज़माने में असले वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन बाकायदा पहरे होते थे नौजवान खुदामों के। अब ये इसके बावजूद भी ये हरकतें हों सदर महल्ले में, तो मैंने ख़त लिखा, उसमें ये पूरा मामला लिखा कि ये हमारे साथ हमारे घर में हो रहा है कुछ महीनों से, हम बहुत तंग आ रहे हैं इस सिचुएशन से। तो आगे से ना कुछ दिन गुजरे, जब लेटर के बाद एकदम से अमूरे आमा की तरफ से कोई 15-20 जत्था आया लोगों का हमारे घर में, एकदम से पूरा दाखिल हुए घर में। तो उनका तरीका था, हाँ जी बोलो क्या बात है, कि पंजाबी में क्या बात है, बोलें क्या करना है। अम्मी ने बताया कि हमने लिखा था इसलिए कि हम ये बड़े परेशान हैं इस किस्म की कॉल से। तो हम जाहिर है सामने आ गए, जब सब लोग अचानक आए हैं कम घर में, तो अच्छा कितनी कुड़ियाँ ताड़ी, कितनी कुड़ियाँ ने, अम्मी ने बताया मेरी 4 बेटियाँ हैं, उम्रें क्या है। तो आगे से फौरन टू द पॉइंट राइट अवे अगला जुमला ये था कि जवान कुड़ियाँ ने तुसी की जानते हो घर च होर की होएगा, इन्हां दे विचों किसी दा यार होना है, पता करो किहदा यार है। ये अमूरे आमा के, मैं आपको बता रही हूँ, ये जवाब था। सानू की पता की गल है, कौन करदा पिया है, सानू नहीं पता। गल सही है कि किहदा यार कर रहे हैं, पिछे किहदी अड्डी सट्टी लाई है, सानू दसो सबूत की है तुहाडे कोल। हमें ये अल्फाज, आप सोचें कि उसमें क्या आप पे गुजरती है कि आप विक्टिम हैं और ये आपको राइट अवे जवाब मिले। बड़ा उस वक्त तकलीफ हुई, और ऊपर से मोहल्ले में भी अमूरे आमा आपके घर में आए, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली लेबल लग जाता था कि कुछ तो हुआ है ना, जो अमूरे आमा आई है, तो वो बदकिरदारी का लेबल तो फौरन लग गया ना। तो वो मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई कि अब सबूत को क्या करना है। मैंने फौरन ना, हमने गए फैसलाबाद अम्मी के साथ लेके कि हमने मार्केट से वो छोटे टेप रिकॉर्डर होते हैं वो लिए, और हम लोगों ने एक मुहिम की तरह बैठ के ना वो रिकॉर्डिंग की, वो वाली गंदी फहश नंगी बातें हमने मतलब उनको रिकॉर्डिंग की, उनको बातें करके लटका के। सोचे ज़रा हमारा क्या हाल होगा उस ज़माने में, जब मेरी उम्र देखें, और वो वाक़या बता रही हूँ। और वो जब हमने रिकॉर्डिंग की, उसके बाद 15-20 दिन का मुहिम कर लिया तय, फिर मैंने दोबारा उनको एप्लीकेशन दी, दोबारा लेटर लिखा कि अब हमारे पास सबूत मिल गए हैं, अब आए आके सबूत देख लें। फिर आए, हमने निकाह दी, ऑन की मैंने टेप जो थी उसके अंदर रिकॉर्डिंग। सुनते ही पहला जुमला क्या था, जो जितने बैठ सुन रहे थे ना, 15-20 बंदे आए, मोरे अम्मा के खुदाम थे साथ, दूसरे सब एक दूसरे में ना चहमगोइयाँ करने लगे कानों में, ए तो शैबी है, ए तो लुकी है, ए शैबी है, ओ हर कोई ऐसे, मतलब कि हर बंदे के नाम का उनको पता था। शैबी कौन था? डॉक्टर खालक का
भाई छोटे वाला गुलाम बारी सैफ का बेटा, जो उस वक्त शेर जो ड्राइवर था, और ये इसका मेजर शेर अली है ना, जो फैसलाबाद की सीट उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ वजीर आला था, और मेजर शेर अली जो उसका बहनोई है ना नवाज शरीफ का, वो फैसलाबाद की सीट थी उसके पास। तो ये उसका ड्राइवर था, ये ड्राइवर था उसका। अब देखें ये तमाम, ये क्योंकि उसका ड्राइवर था तो ये क्यों करता था, अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन वो हमें जब बात करता था ना, गालियां देते हुए, नंगी बातें करते हुए हमें धमकाता था कि मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें ये बात समझ नहीं आती थी कि कितने के बड़े ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं कोई बिगाड़ सकता। हमारे लिए तो जमात से बढ़ के कोई थी नहीं आगे बड़ी बात। तो हमने जब बात की तो जमात ने फिर भी हाथ नहीं लगाया, और आगे से उन्होंने क्या बात की, हमें सुनने के बाद ऑडियोज उनकी, आगे का कुड़ियों जो जाना है ना जहाज से चढ़ना है, तेरा ताड़े प्यो ने बुलाया है जहाज से चढ़ना है, तो मुंह चुप करके मुंह बंद करके बह जाओ, नहीं तो इन्हां मुंडिया ने तानू जहाज नहीं चढ़न देना, उत्थों भी लवा लेना है। मतलब ये हमें ये जवाब मिला था सबूत देने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आप बताते हैं ऐसा, तो जाहिर है इंटरनली वो लोग भी होते हैं जो उनके जानने वाले होते हैं, उनको सपोर्टर होते हैं, उन तक बात पहुंच गई, उन लड़कों तक कि ये हमने सबूत फराहम कर दिए हैं। अब वो लोग तो और शेर हो गए ना कि वो कहें कि अब ऐसे तैसी लड़कियों को हम बताएंगे ये होती कौन है, इन्होंने ये हरकत की। वो तो उन्होंने हमें ऐसी बातें करनी कि रात के टाइम हमारा अपने घर में जीना मुश्किल हो गया था, कि हम लोग रात सो नहीं पाते थे, इतनी खौफनाक। उन्होंने कहना देखो आपके घर, आपके जो है ना बाहर सेहन में ये फलां चीज़ पड़ी हुई थी, अब हम उठा के ले आए हैं। और वाकई हमारी वो चीज़ें गायब होती थी, वो पिछली दीवार फलांग के रात को आते थे और उठा के ले जाते थे हमें हर ऐसा करने के लिए। और आप जरा तसव्वुर कीजिए कि वो हमारा क्या हाल होगा। इतने खौफजदा थे कि हमारा सांस लेना मुश्किल था, स्कूल छूट गए थे। मैंने प्राइवेट एग्जाम दिया था बीए का, मैं इतनी मुश्किल हालात में थी उस वक्त कि आप बता नहीं सकते। हम लोग सब बहनें, हम लोग घर से निकलना मुश्किल था। फिर उस जमाने में एक फरिश्ता बन के एक बंदा आया घर में, वो अब्बू के लिए कोई अब्बू के क्लास फेलो थे, आपको पता होगा, लतीफ़ गजनवी नाम था कोई, ये थे उनके क्या जो खिलाड़ी, मेरे ख्याल कबड्डी का था या पता नहीं हॉकी के मेरे ख्याल थे, वो जो सिखाते थे ना, उनके जो होते हैं इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये अब्बू के क्लास फेलो थे, उनको अब्बू का नंबर चाहिए था, फ़ोन नंबर उनसे रब्ता करने के लिए। तो उन्होंने ना, लेकिन वो रब्वा में कोई उनको बुलाता नहीं था, उनको मुर्ताद कहते थे, कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता था रब्वा में। वो किसी के घर भी जाते थे ना तो लोग उनका मतलब दरवाज़ा नहीं खोलते थे। लेकिन हमें इस बातों का इल्म नहीं था, क्योंकि जब दरवाजे पे आए हैं उन्होंने कहा बेटा अब्बू बाहर से ही कि अब्बू का नंबर चाहिए। हमने ना, हमारी हालत इतनी बुरी थी कि हमने फ़ौरन अंदर बुला लिया कि अंकल आए। तो उन्होंने हमारा हुलिया देख के ही ना, शक्लें देख के कि बेटा सब खैरियत है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, हमें लगता है कोई सब ठीक नहीं है। तो हमारे तो जैसे आंसू होते हैं ना निकलने को, बेताब रोने को, तो हम हिचकियों से रोने लग गए कि अंकल ये सिचुएशन है, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। तो वो कहते हैं अच्छा हमें आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप बैठो बेटा। मैं भी अंदर आके बैठ गए। आके उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि बेटा मैं जंग अखबार का रिपोर्टर हूँ, मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं खबर देता हूँ ये वाली, आपने ऐसे करना है कि ओपन लेटर लिखो, नवाज शरीफ वजीर आजम है, उसके नाम ओपन लेटर लिखो, तमाम वाकया लिखो, क्योंकि उसके बहनोई का नाम यूज़ किया जा रहा है इस चीज़ में। आप उसको इसका हवाला दो और उसको इस चीज़ का बताओ कि ये मामला ऐसा है, तो मैं खुद आपका लेटर जो है वो रजिस्टर्ड करके आऊँगा ताकि वो उसके हाथ तक उन तक पहुँचे। मैंने उसी वक्त बैठ के ओपन लेटर एक लिख के मैंने उनको दिया, और उन लोगों ने तमाम वाक़े के साथ के कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, उनके बाद हमारे पास सबूत हैं जो जमात को दिए। मैंने अंकल को वो सबूत भी सुनाए, उन्होंने सुन के पूरी एक अखबार की रिपोर्ट बनाई कि रब्वा में इस तरह लड़कियों को निहत्ती लड़कियों को अखबार किया जा रहा है, हरासा, और उसमें शेर अली के जो हैं उन कारिंदे हैं। जब शेर अली का नाम आया तो वो आपको पता है जमात तो एकदम बफर गई ना, क्योंकि आपको पता है रब्वा में कोई ऐसी बात हो जाए जो उनके हाथ से निकल जाए, ये तो हेजान बर्पा हो जाता है। तो उन लोगों ने इतने खौफजदा हो गए ये तमाम, इन्होंने हमारा पूरे मोहल्ले वाले भी उस वक्त उस ज़माने में तमाम जो चीज़ें थी, हमारे किरदार भी जो है जो होने थे उन्होंने बदनाम कर दिए। फिर इत्तफाक ये 3 दिन का टाइम था, 3 के 4 दिन बाद मुझे पहली दफ़ा कॉल आई थी इस्लामाबाद से,
اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم صدر ہاؤس سے بول رہے ہیں جہاں آپ نے اس طرح جو لیٹر لکھا ہے ہمیں مل گئی ہے رجسٹری, آپ بتائیں ہم آپ کی انویسٹیگیشن کرنے آ رہے ہیں, پورا ہمارا لوگ آئیں گے, ہم ابھی معاملہ دیکھنے. اور ودن 24 آورز ان کے تقریباً 15-20 گاڑیاں آئی تھیں, پنڈی کے تھے, DIG سرگودا کے تھے, ان تمام مل کے آئے تھے ہمارے گھر, اور انہوں نے آ کے وہ آڈیوز سنی. لیکن تب تک جماعت کے جو لوگ, جس طرح اتنے لوگ اندر آتے ہیں اس ٹائم میں, تو آپ کو پتہ ہی باتیں اتنی جلدی آؤٹ ہوتی ہیں, وہ لوگ انڈر دی گراؤنڈ ہو چکے تھے تب تک, ان لوگوں نے تمام وہ چھپ گئے تھے. لیکن ان لوگوں نے جو آڈیو سنی ہم سے لے لی تھیں, وہ چیزیں ثبوت لے لیے تھے, اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے بھی مارے تھے, جا کے کوئی ملا نہیں, انڈر گراؤنڈ تھے. انہوں نے جو کنکلوژن دی تھی اس رپورٹ کی, جو پورے معاملے کی, ہمیں جو اینڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیکس ٹریفکنگ چلا رہا ہے. یہاں ربوہ سے جو نہتی لڑکیاں ہیں ان کو اٹھاتے ہیں, بہلاتے پھسلاتے ہیں, یا ان کو اپن کی مرضی سے تیار کرتے ہیں اس کام کے لیے, ان کو جا کے وہاں باہر کے سیاست دانوں کو بیچتے ہیں, یا ان کو راتیں گزارنے کے لیے دیتے ہیں, ان کی عیاشی کے لیے فراہم کرتے ہیں, اپنے مفادات نکالنے کے لیے. اور اس میں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اوپر سے, تبھی تو یہ دھندا چل رہا ہے. اور اس میں صرف آپ نہیں ہیں, بہت سی لڑکیاں ہیں یہاں پہ جو مرضی سے کر رہی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو جس عمر میں لے آئے ہیں وہ کہاں جائیں, اور ان کو اپنی مرضی سے شامل کر رہے ہیں. یہ تمام واقعے کی رپورٹ ہمیں دی گئی تھی, اور اس کے بعد ہم لوگوں سے کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا. ہم وہاں سے شفٹ ہو کے, جب تک ہمارا ویزا نہیں آیا, میں تو کم سے کم ربوہ سے باہر رہی ہوں اس کے بعد. اور کچھ مہینے میں جب ہمارا ویزا آیا ہے تو ہم نے جیسے تیسے جو چیزیں وہاں تھیں چھوڑ کے ہم نے صرف ٹکٹ پکڑی تھی اور نکل آئے تھے. اور میں آپ کو یہ واقعہ اور یہ امور عامہ میں آج بھی میرے لیٹر بھی موجود ہوں گے, اگر تو وہ تحریریں موجود ہیں, اور باقی تمام ریکارڈ اگر تو وہ موجود ہے ان کے پاس, تو ہونا چاہیے. میرے ابو, میرے والدین, میرے گھر والے, میرے تمام رشتہ دار, وہاں کے رہنے والے سب گواہ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. آج وہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ کہتے ہیں جھوٹی کہانی ہے, یہ ہے وہ ہے. میرا تو ان کو یہ بھی کہنے کو دل نہیں کرتا کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہو, تاکہ آپ کی بھی آنکھیں کھلیں, کیونکہ وہ آپ کی بہنیں بیٹیاں بھی عورتیں ہیں. میرا دل نہیں کرتا میں کسی عورت کے لیے یہ الفاظ استعمال کروں, میری غیرت ہے, میری شرم آتی ہے مجھے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ان مردوں کو کہوں کہ تم لوگوں کو کب غیرت آئے گی, ڈوب مرو. تم لوگوں کے جینے سے بہتر ہے کہ تم لوگ مر جاؤ, کہ تم لوگوں کی تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے محافظ بن سکو. تم لوگوں نے تو عزتیں لٹا کے تم لوگوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی ہیں. ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ میں خاموش رہوں اور میں چپ کروں, میرے الفاظ میٹھے ہوں, میں شوگر کوٹنگ بات کروں. کیسے؟ اور تب بھی اس کے باوجود بھی کہ اتنا بڑا واقعہ گزرا مجھ پہ, تب بھی میں احمدی تھی جہاں آنے تک ہماری خاندان. کیوں کہ ہمارے خاندان پہ عقیدت, ہم لوگوں نے بڑی جماعت کی خاطر قربانیاں دی ہوئی تھیں. ہمیں تھا کہ جماعت کا نظام چند بھیڑے ہیں کالی, اوپر تو خلیفہ تو تک بات نہیں پہنچی. لیکن وہ چیزیں تو بہت بعد میں باقی چیزیں دیکھ دیکھ کے سمجھ آئی کہ نہیں, یہ کالی بھیڑیں یہاں نہیں ہے, یہ اوپر کا گندا نالا کھلا ہوا ہے. یہ بات جو ہے یہ بہت دیر بعد سمجھ میں آئی یہاں آنے کے بعد. لیکن یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ اس دور کا ہے جو آج سے 35 برس پہلے ندا آ رہی ہے. ابھی کچھ سال پہلے ندا اٹھ کے بتاتی ہے کہ یہاں پہ چکلے کھلے ہوئے ہیں, ریڈ زون ایریا ہے قصر خلافت. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صدر محلے کا جب ریڈ زون ایریا 35 سال پہلے بھی تھا. جب آپ 35 سال پہلے موجود جو چکلے تھے, ریڈ زون تھے, ان کو بند کرنے کی بجائے سپورٹ کریں گے, لڑکیوں کو ڈرائیں گے, ان کو بھگانے کے لیے مجبور کریں گے, بھاگنے کے لیے وہاں سے, تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو ان کے شکاری ہیں, درندے ہیں, ہوس پرست ہیں, ان کو آپ سدھرنے کی توقع کریں گے ان سے؟ آپ لوگوں نے تو ان کو سپورٹ کیا ہوا کہ کھولے رکھو, انڈر دی خلافت کی چھتری تلے کنجر خانے کھولو, اور وہ کھلے ہیں. یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. اب آپ غور سے سن لیں کہ ندا کو جو غلط کہتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں رتی بھر کہ اس کے الفاظ پتہ نہیں رائٹ ہیں کہ رانگ ہے. میں ذاتی طور پہ میں نے اپنی بات بتائی ہے کہ میں گواہ ہوں, اس لیے میں تو کسی طور نہیں کہہ سکتی کہ ندا غلط ہے جب میں نے خود دیکھا ہو وہ چیزیں. اللہ اکبر. ابھی جو ہے نا زمانہ ترقی کر گیا. پہلے آپ کے گھر کے صحن سے چیزیں اٹھا کر لے کے جاتے ہیں, اب جو ہے وہ لوگوں کی پوٹی چیئر, ویل چیئرز پینچر کر جاتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے, میں تو سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ہم لگاتے ہیں اس کو اپنا کنٹینیو. السلام علیکم, کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. ابھی تو سب کا ہی ٹائم حال ہے بھائی.
نہیں، میں سن رہا تھا، آفاف کی باتیں سن رہا تھا میں۔ اس سے پہلے میں کافی عرصہ سوشل میڈیا پہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ نا جماعت احمدیہ کا ایک بڑا ان کا رویہ ہوتا تھا، دیکھیں جی مولوی کیا کر رہا ہے، دیکھیں جی یہ مولویوں کی ویڈیوز اور یہ فلاں، سارا دن یہ لوگوں کو یہ شیئر کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ذوق آگئی گروپ میں تھے ہم، آفاف بھی تھیں وہاں پہ، یہ زاہدہ نثار بھی تھیں، وجیحہ ظفر، سمیع ظفر صاحب اور کافی سارے اور بھی لوگ تھے۔ یہ پہلا غالباً گروپ تھا جہاں پہ میں شامل ہوا تھا، اور وہ وہاں پہ ایسے لوگ تھے جو جماعت کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے اور جماعت کے اصلیت کے بارے میں کافی جانتے تھے۔ تو وہاں پہ بہت ساری باتیں میرے لیے شاکنگ تھیں، کیونکہ جو چہرہ ہمارے سامنے جماعت کا پیش کیا جاتا تھا وہ تو بڑا دھو کے صرف کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا کہ ہم دنیا میں سب سے پاک صاف لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، باقی ساری دنیا گندی ہے۔ تو جب میں نے یہاں پہ وہ کہانیاں سننا شروع کی کہ بھائی یہ تو مطلب مولویوں کی تو یہ ویڈیوز لوگوں کو شیئر کرتے ہیں کہ مولوی کیا کر رہا ہے، لیکن اب ان کے اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ میرے لیے بہت ساری شوکنگ تھی چیزیں وہ جو میں نے ان کی زبانی سنی۔ پھر یہ وجیحہ، آفاف اور زاہدہ نثار اور وہ جو ایڈمن تھیں اس گروپ کی، روشنی مغل کے نام سے تھیں، اور آئی تھنک میں نام ان کا شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو بڑی شاکنگ چیزیں تھیں میرے لیے وہ، اور بہت سارے لوگوں کے لیے۔ بہرحال سوشل میڈیا نے جو نقاب اتارا ہے اس نظام کے اور اس جماعت کے چہرے سے، بہت بھیانک چہرہ نکل کے سامنے آیا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ جو اخلاقیات کا ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا۔ دوسرا، ہم سنتے تھے کہ احمدی گالی نہیں دیتا، احمدی نے گالی دی ہے، اور اتنی گندی اور غلیظ زبان ہم نے سنی ہے جماعت احمدیہ کے لوگوں کی کہ اللہ معاف کرے۔ عرشی ملک، سوری جی، بالکل زاہدہ باجی، عرشی ملک۔ عرشی آپا کو بھی بلائیں گے کسی دن انشاءاللہ۔ آپا نا طبیعت کی وجہ سے وہ ان کی طبیعت بہن کی وفات کے بعد نا کچھ ڈاؤن ہے، وہ بات کرنے کی کیفیت نہیں ان کی ہوتی، خاص طور پہ آن لائن۔ وہ چھوٹی موٹی اپنی آڈیوز وہ کر دیتی ہیں، ویڈیوز بنا لیتی ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی وہ ریکور کر رہی ہیں، اس لیے وہ بھی دور ہیں سوشل میڈیا سے نا۔ نہیں صحیح ہے، ضرورت بھی یہاں پہ تو اتنا ٹاکسک ہو گیا نا۔ لیکن یہ والی چیزیں نا، یہ ذوق آ گئی اور یہ ساری چیزیں میں سنتی آئی تھی، میں نے کہا تھا کیوں لوگ مطلب کافی ذکر کرتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر آپ لوگ یہ سارا کچھ ڈسکس کر چکے ہو۔ میرے لیے خود شاکنگ ہے بہت ساری چیزیں۔ صفیہ، ہم لوگ ربا کے ہیں، میں پیدا وہاں ہوئی ہوں، میں نے وہاں جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے، آپ سوچو اتنی عمر میں ہی، اور میرا جہاں رہائش میں نے آپ کو بتائی ہے، مرزا طاہر کی طوبہ میری کلاس فیلو تھی، مرزا انس کی فریحہ میرے ساتھ تھی، میرے ڈاکٹر مبشر کی زنوبیہ میری کلاس فیلو تھی، یہ تین تو میرے ساتھ تھیں۔ ان کے گھروں میں جانے کی وجہ سے مربیوں کی ساری جو اس وقت ناظر ہیں، ان کی بیٹیاں، نام لو کسی کے، میں بتاتی ہوں، میری کلاس فیلو تھیں۔ اب یہ آپ نے اسکول وہاں پڑھے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کے گھروں میں جانا آنا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو یہ چیزیں تو آپ کی نظر میں، بچپن کا ٹائم تھا، ہم دیکھتے تھے عام یہ چیزیں، لیکن اس وقت اتنے عقیدت مند تھے کہ ہمیں وہ چیزیں بودر نہیں کرتی تھیں، ہمارے لیے وہ نارمل تھیں۔ اب جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ہر چیز کے تانے بانے جڑنے لگتے ہیں نا، کہ یہ آپ کو خود بخود پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تھیں، یہ انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھو جس طرح یہاں ابھی میں بات کی ہے تو لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں بھائی آفاف نے چکلا کھولا ہوا ہے، آفاف نے یہ کیا ہے۔ اب مجھے نا ان باتوں سے اب دکھ نہیں ہوتا، لوگوں کو ہوتی ہوگی تکلیف سن کے یا پڑھ کے، مجھے نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے لیے جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، یہ وہ واحد واقعہ تھا میری زندگی کا جس نے میرے نظر میں کردار اور بد کردار کی تعریف الٹ کے رکھ دی تھی، اور جو ہوتا ہے نا مرتد اور کافر کی تاریخ بدل کے رکھ دی تھی۔ کیوں؟ جس کو یہ لوگ کہتے تھے مرتد ہے، انہوں نے آ کے ہماری مومنوں کے درمیان میں مدد کی تھی۔ اس انسان نے جس کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، جس سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا، جس سے بات کرنا جو ہے بڑا برا سمجھا جاتا تھا، اس کی طرف سے گزرتے ہوئے تھوک کے گزرتے تھے، اس انسان نے آ کے ہمیں اس ٹائم پہ مدد کی۔ میرے لیے تو وہ فرشتہ ہے۔ اب رہی بات کردار کی، اب مجھے کوئی کہے میں نے چکلا کھولا ہے، بھئی اگر تو میرا چکلا تھا تو میں کہتی ہوں وہ کہیں بہتر ہے اس چکلے سے جو تم لوگوں نے کھولے ہیں۔ میرے لیے تو وہ کردار ہے جو میں نے کیا۔ آپ جو کر رہے ہو جو مرضی کرو، داڑھی رکھ کے اور وہ جو پہن کے اپنی پگڑیاں پہن کے داڑیاں رکھ کے، تو جو وہ آپ کرو گے وہ میرے لیے بد کرداری ہے، اور جو میں کر رہی ہوں وہ میرا کردار ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی تو ڈیفینیشن ہی ملتی نہیں ہے نا،
करदार की और बदकरदारी की, ईमान और बेईमानी की। हमारी तमाम डिक्शनरी अलग है, इसलिए मुझे आप जो मर्जी कहेंगे वो मेरे लिए फख्र होगा, क्योंकि वो मैं उस पर पूरा उतरूंगी फख्र से, क्योंकि वो मेरे लिए उन बातों को मानना अब काबिल कबूल नहीं है। जी जायदा। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर ये जो मुर्तद का चढ़ा देते हैं ना, रब्बा में एक दो औरत थी, एक मैंने देखी थी, मेरे अम्मी अबू क्योंकि वहाँ पे रहते थे, मेरे अबू जान रिटायर हो गए थे, तो फिर मेरे पेरेंट्स सब बहन भाई सब उधर चले गए थे रब्बा में। तो वहाँ पे एक औरत आया करती थी, तो उसे वो लोग सब कहते थे ये मुर्तद है, तो उसको मतलब किसी वजह से जमात छोड़ी होगी या निकली होगी या निकाला गया होगा। बहरहाल मुर्तद क्या है कि उस इंसान को इतनी बुरी नज़र से ये लोग देखते हैं, तो पता नहीं मुर्तद क्या होता है इनकी नज़र में। मुर्तद एक बहुत बुरी चीज़ को ये कहते हैं, तो इसलिए ये हमें मुर्तद कहते हैं। जो जमात से निकल जाते हैं, जमात को खैर बात कह देते हैं, उसे ये मुर्तद कहना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुर्तद तो मेरे ख्याल में वो होता है जो इस्लाम छोड़ देता है, जबकि तो ये पहले मुर्तद हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम छोड़ा है, पहले इन्होंने इस्लाम छोड़ा है। ये इस्लाम कहते हैं हकीकी इस्लाम है, हम हकीकी मुस्लिम हैं, हमारा अहमदियत हकीकी इस्लाम है, जबकि ये गलत है। तो असल मुर्तद तो ये है। ये मुर्तद वाली बात ना जायदा मेरे लिए भी ना बड़ी हैरान कुन है। मुझे अब 14 महीने और 1 दिन हो गया है इखराज किए हुए। आपके तो 10 साल गुजरे ना, लेकिन मुझे भी मुर्तद कहा जाता है। लेकिन कोर्ट में, स्वीडिश कोर्ट में मैंने केस किया हुआ है, तो वहाँ पर जो जमात की तरफ से जवाब आया कि मैं जो हमें मुर्तद समझते मैं उनके साथ बैठती हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आती है कि मुर्तद लफ्ज़ जो है मतलब किलो के हिसाब से बढ़ता है, तो कौन किसको कहता है? कुछ कह रहा था जी, ये जिसको बहुत बुरा कहना होता है ना, जिसके ऊपर सारी दुनिया जहान की बुराइयां थोपनी होती हैं, उसे मुर्तद कह देते हैं। हाँ, तो कोर्ट में फिर ऑपोजिट क्यों कहते हैं? कोर्ट में तो इन्होंने कह दिया कि दूसरे हमें मुर्तद कहते हैं, जबकि ये खुद मुर्तद हैं। ये असल में ये खुद मुर्तद हैं, जब ये दूसरों को मुर्तद कहते हैं। जब जो जमात छोड़ता है उसको मुर्तद कहते हैं, जबकि उसके ऊपर जो जमात छोड़ देता है उसके ऊपर जब असलियत खुलती है कि असल इस्लाम तो इन्होंने छोड़ा हुआ है, फिर पता चलता है कि ये मुर्तद हैं सही। तो ये हमें कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं, ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ये पता है ख्वाजा टी साहब, आप वही हैं ना जो हमारे हेड मुरब्बी साहब के बहुत अच्छे कज़न है, क्योंकि 2 ख्वाजा यहाँ पे है ना, टी ख्वाजा और वो, इसलिए मिक्स हो जाता है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जो आपको कह के गए थे मैं उनसे बात करूंगा, या साहब से, और बाद में आके इन्होंने कहा था कि मुझे आपके करतूतों का पता चल गया है। ये वो ख्वाजा साहब है। तो वो अभी इनको किसी और बहन का भी पता चल गया है, कह रहे हैं जो औरत घर से भाग जाती है गैर अहमदी के साथ, अच्छा वो मुर्तद होती है। तो हम औरतों में से कौन सी औरत है? आज किसको भगा रहे हैं? तो इनसे पूछे तो फिर वो मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में क्या कहेंगे, जो मोहम्मदी बेगम के पीछे पे पड़े हुए थे। सवाल करें इनको, इनको कहेंगे वो ठीक थे। कल बद गई है मुख्तारिया ख्वाजा साहब, ये जो भागी हुई बहनें हैं ना बड़ी खतरनाक है, आके ऊपर बात कर लें इनसे भाई। नहीं, इनको पूछना तो बनता है ना भाई, मुर्तद का सीगा सिर्फ हम औरतों के लिए क्यों? मैं तो फखरिया कहती हूँ, मैं मुर्तद हूँ, मुझे तो गाली नहीं लगती, मैं तो फखरिया। भाई ये जिस किस्म के ये ईमान है, तो ऐसे ईमान से तो बेईमानी भली भाई। लेकिन ये जहाँ से पता करके आते हैं ना, ये कोई कम बात नहीं है। ये हमारे स्वीडन के जो हेड मुरब्बी साहब हैं उनके कज़न हैं, तो ये बड़ी कंफर्म बात पता करके आते हैं। नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, वो जो ऊपर बैठे हुए मुरब्बी साहब वो सब मार्केटिंग एजेंट होते हैं, वो तो उन्होंने वही बात करनी है जो ऊपर से उनको हुक्म आ रहा है। उनके पास अकल नाम की कोई चीज है, इन्फॉर्मेशन है कोई? मुरब्बी साहब मैंने कुछ नहीं कहा, मुरब्बी साहब ये अफाफ मुर्तदा ने कहा है। अब अच्छा और कोई इन्फॉर्मेशन है तो दे दें, क्योंकि यहाँ पर
तो हम सारी भागी हुई हैं, हमें बता दिया करें आज कौन सी बहन भगानी है, ठीक है? चलो जी, ऊपर लो, आ रहे हैं ऊपर भाई, कुछ सीट खाली करें भाई, बहुत जरूरी आए हैं ऊपर। मैं करता हूँ, आप मेरी जगह नहीं, मैं करता हूँ। आजाद भाई आप बैठे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, वो कोई डरपोक थोड़ी है, आ जाए ऊपर, डालें कॉल डालें। मुझे लगता है चले जाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। कहाँ है कॉल? आ जाए ख्वाजा साहब, कॉल डालें। ख्वाजा साहब सिर्फ गाली नहीं देनी बस, बाकी आप नहीं के बात दे करें। कोई बात नहीं, अब वो हमें गाली दे ना, वो मुरब्बी साहब ने उनको बताया होगा। कहाँ है भाई? कोई नहीं है, कोई नहीं उनको गालियां दे लेने दो, उनके पास जो है वही देगा ना, कोई तेरे देने दें। ओहो अफाफ, कैसी बात कर दी आपने, वो है, उन्होंने कॉल ही नहीं डाली करने। ओके, मौजूद तो हैं ख्वाजा साहब, नीचे बैठे हुए हैं वैसे। ख्वाजा साहब कॉल डालेंगे तो आपको ये भागी हुई बहनें उठाएंगी। भाईजान डर गए, भाईजान नहीं आ रहे भाईजान, या वो पिछली दफा की तरह अताउल मनान भाई ले जाएंगे आपको। वो सीकर बैठा हुआ है ना, सीकर को उतार दे पहले। ख्वाजा साहब सीकर कुछ नहीं कहता, मैं बैठा हूँ, सीकर को मैं बोलने नहीं दूंगा। आ जाओ। अरे सीकर जैसे हजारों आ जाएं, उन्होंने आके बताना है। खबरदार जो किसी ने मुखन्नस कहा ख्वाजा भाई को, अभी ऊपर आ रहे हैं, खबरदार, नो बैड लैंग्वेज। आ जाए भाई, आ जाए यार कमेंट्स में थोड़ा सा सिविलाइज रहें, कमेंट्स में ना करें ऐसे। मैं वैसे पहले भी नजर नहीं आ रहे कहने ख्वाजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो थे। हाँ वो ये कह के चुप को ऊपर भाग गए। अच्छा चले, वो आ जाएंगे ख्वाजा साहब। अच्छा वो पीछे नीचे ना कोई बटरफ्लाई नाम की एक आईडी थी, उसको मेंशन करके किसी ने गाली दी है, तो ना करें यार ऐसा। ख़वातीन जो हैं वो चाहे जमात अहमदिया की भी हैं, तो कोई बंदा भी किसी के साथ बदतमीजी ना करे। उनके जो किरदार थे ना, उनके घर में कोई खातून नहीं टिकती थी काम करने वाली, ये मशहूर था वहां पे उस टाइम पे। और जो जिस अस्पताल में काम करते थे कोई नर्स भी नहीं टिकती थी। सबने अपने आप को मुलव्वस किया इसमें। असल को मैं पूरा बचाना चाहती थी, वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं कैसे रुकती थी नमाज में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हुजूर मुलव्वस नहीं होंगे। ये जिसने तुम्हें कहा है ना एडिंग एंड अबेटिंग वाला, वो इतना पागल है कि उसे लॉ की अलिफ बे भी नहीं पता, लिहाजा कीप अवे फ्रॉम हिम। एडिंग एंड अबेटिंग, एक मिनट रिवाइंड। असल को मैं पूरा बचाना चाहती थी, वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं कैसे रुकती थी नमाज में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हुजूर मुलव्वस नहीं होंगे। ये जिसने तुम्हें कहा है ना एडिंग एंड अबेटिंग वाला, वो इतना ये एडिंग एंड अबेटिंग क्या होता है? एडिंग एंड अबेटिंग वाला वो इतना पागल है, इतना पागल है कि उसे लॉ की अलिफ बे भी नहीं पता, लिहाजा कीप अवे फ्रॉम हिम। आई एम टेलिंग यू, aiding and abetting cannot be in historic crimes. The crimes which have already been committed years ago, that cannot be. प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं मुजरिमों को। उसको सिर्फ अल्फाज ये आ गए हैं एडिंग अबेटिंग वाले, उसको एडिंग एंड अबेटिंग का मफहूम ही नहीं पता कि ऑब्वियसली मैं आपको बिलीव कर रही हूँ जो आप बता रहे हैं, मगर नहीं बात करूंगी उससे अगर आप मना करेंगे। नहीं करूंगी। नहीं जान, मैं ये नहीं कहता कि तुम बात ना करो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नीम हकीमों से मशवरे ना लो। अच्छा ठीक है। और ये पता चल गया, इसे एक बात से ही पता चल गया है कि द गाय इज अ नीम हकीम। अच्छा मैं ये अम्मी वाला टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहती हूँ। पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी,
as long as you tell the police woman और उसे लिख दो कि प्लीज। मैंने लिखी है, मैंने बताते मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। मैंने लिखा है बच्ची अच्छी है वैसे। हाँ बच्ची अच्छी है वैसे। नहीं सेक्सी भी हो लेकिन वैसे भी अच्छी है। नहीं पता नहीं कि आपने कभी मम्मी से मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया? नहीं फील किया था अंदर से? यार खुद लिसन, खुदा की कसम she never even wanted to, because she's a totally different, she was, I don't know what she's like, she's changed now, she's changed totally, she was a totally different person, okay? बहुत खुददार थे, बहुत उनकी जो self respect, self ego, everything, she had a lot, okay? Not anymore. Exactly, I know that. She is broken. She is a broken person, totally shattered person. So you should really not be putting her down. You should be. No, this is मैं आपसे ताल्लुक खत्म कर लूंगी अगर आपने नाइंसाफियां की। मैंने कौन सी नाइंसाफी की? हाँ, ये नहीं है कि just because she gave birth to me, she gets to treat me like a dog. No. नहीं वो तो अब मुझे नहीं पता कि she treats me like a dog. मैं just नहीं. No, it just was my parents. मैं वैसे कह रहा हूँ कि she never asked me कि मुझे ये बताएं, मुझे ये कहें, मुझे वो कहें, मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी कहने, right? नहीं, एक है कि जरूरत नहीं थी कहने की, एक है कि फील किया और नहीं था। Not even that, not even in bed. Oh my God, not even in bed. फील भी नहीं किया। Not even that, not even in bed. It was just physical. और मेरे साथ नहीं, एक है कि जरूरत नहीं थी कहने की, एक है कि फील किया और नहीं था। Not even that, not even in bed. Oh my God. और फील भी नहीं किया, it was just physical. और मेरे साथ क्या है? तुम्हारे साथ obviously there is a lot more in this in terms of that. You're a different person. आपको रहम आता है मेरे पर्सन में कि ये इसको यार मैं इतना रहम दिल इंसान नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, मैं बड़ा जालिम हूँ। हाँ? क्या मैं कह रही हूँ आपको ये होता है, इसको इसकी जिंदगी में प्यार की कमी रही है, इसी में इसको प्यार इसलिए नहीं दिया जाता कि भाई इसकी जिंदगी में प्यार की कमी है इसलिए दिया जाए। दिल में जैसे मेरे लिए आके ये प्यार उठता है, कुदरती तौर पे उठता है। It doesn't have a reason or explanation. अच्छा listen, I'm trying to go to the bathroom. मैं सोच के उठाऊं। Can I go have a walk? चक्कर आ रहा है। नहीं जा सकते। नहीं आज नहीं मैंने जाने देना। ऐसी बात है ना कि आपको just turns me on. नहीं आपको अब नहीं जाने देना। मैंने कहा कि मेरे दिल के तराने सिर्फ आपका नाम है। यार तुम तो कहती हो तुम्हें उर्दू आती ही नहीं, शायरी ऐसी करती है तो आती है, शायरी ऐसी करती है कि जवाब नहीं। नहीं तो are you gonna call me back or are you gonna pop into bed and go to sleep? No, I'll call you back. अच्छा ठीक है, I'm waiting. मैंने तो किसके ऊपर खत्म किए कॉल? ये अब इसको स्टार्टिंग का मैं लगाती हूँ। I mean unbelievable. उफ। जी अफाफ या ख्वाजा साहब आए आपसे बात करने। जी मैं मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप फरमाएं। क्या मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? वो अब पहले ये तो बताए ना कि कौन सी बहन भागी हुई हैं खातून, वो भी बता देना। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने अक्सर जो
रबुआ में भी कुछ ऐसी ख़वातीन थीं जिन्होंने गैर अहमदियों से शादी की और घर से चली गई, माँ बाप का कहना नहीं माना, तो उनको फिर उनका फिर इखराज हो जाता है जो ज़बरदस्ती, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त वफ़ात से पहले कहा था कि अहमदी हज़रात अपनी बेटियां गैर अहमदियों में ना दें ताकि बाद में ख़ानदान में फसाद ना पड़े। तो कई ऐसी ख़वातीन हैं जो आज़ाद होती थी तो वो शादियां कर लेती थी, फिर उन्होंने जमात की बात नहीं मानी तो इखराज होता था। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैंने किसी बहन को नहीं कहा। ठीक, जो ये ऐसे वाक़यात थे हमारे साहब, मैं जमात आपको एक बात आपको वाकया आपकी बात से याद आ रहा है। आपको मिर्जा ताहिर अहमद का मेरे पास रेफरेंस, कोई दोस्त जो बैठे हुए हैं वो रेफरेंस निकाल दें, उनको वो रेफरेंस मिल जी जाएगा मिर्जा ताहिर अहमद के खुतबों में से मैं जो बात कह रही हूँ उसका। एक जी कनाडा की एक फैमिली थी, उनकी बेटियां थी दो तीन, ये जी 19 तकरीबन 1998 के राउंड अबाउट का टाइम है, उस टाइम के खुतबे। ठीक है। यहाँ पे लड़की ने शादी की थी, अब उनके वालिदैन ने की थी, और ताया का बेटा था, और जो छोटा भाई था वो अहमदी हुआ था, बाकी पूरी फैमिली जो थी वो नॉन अहमदी ही थी उनकी। जो भाई अहमदी हुआ था उसकी जी अहमदी होने से पहले बचपन में जिस तरह वालिदैन शादी तय कर देते हैं बच्चों की, उन्होंने कर दी थी। अब वो लड़की की शादी क्योंकि उनके भाई को दे दी हुई थी, उन्होंने बेटी बड़ी हुई है, उन्होंने शादी कर दी उसकी। अब उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब जैसे शादी हुई, यहाँ से लड़की वालों का अपनी बेटी के ऊपर प्रेशर बनने लगा कि तुम्हारा शोहर अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको तुम मनाओ और उनको हाँ कहो कि लड़के को कहो बैत करे, लड़का बैत करे, क्योंकि वो जमात में आए। नहीं तो लड़के ने आप जब तो आप बात नहीं, पूरी अभी सुनिए, मेरी आपने बात कहा पूरी कि सुनिए, बात पूरी जी सुनिए। ओके ओके तो वो जब उन पे प्रेशर ज्यादा हुआ तो उनके झगड़े होने लग गए दोनों के आपस में। लड़का कहता कि हमारा कहीं से ये ऐसा कोई बात नहीं थी, हमारी बचपन की बात हुई थी, हम खुश हैं आपस में, ये कहाँ से आ गया मसला, में हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो जब ये बात बढ़ गई तो लड़की ने अपने घर में आकर जिक्र किया, हजूर को खत लिखा, फिर लड़की के घर वालों ने कहा देखो अब बैत नहीं करता तो तुम छोड़ के आ जाओ सब कुछ। वो लड़की छोड़ के आ गई, लड़की छोड़ के आके खुले के लिए उसने एप्लीकेशन दे दी। अब ये बात लिख के उन्होंने खत मिर्जा ताहिर अहमद साहब को भेजा, और मिर्जा ताहिर अहमद साहब का जवाब आया था जो जमात में पढ़ के उनकी अम्मी सुनाती थी, और वो जी खुतबे में भी उसका जिक्र किया था। उन्होंने उस लड़की को मुजाहिदा करार दिया था जिसने दीन की खातिर अपना शोहर और बच्चे छोड़ दिए, कि हमारी इतनी बाकरदार और इतनी ईमान वाली बेटियां हैं हमारी, कि ये होती है मजहबी गैरत, कि अपना सब कुछ छोड़ दो दीन की खातिर। ये उन्होंने मिसाल दी थी और उसको ये कहा था। अब आप मुझे ये मिसाल मुझे याद आ, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि उसकी अम्मी जगह जगह मैंने खत पढ़ा था मेरे उनका, और उन्होंने खुतबा भी सुना हुआ है, मैंने उनकी फैमिली को जानती भी हूँ। अब बात आती है, वो बात तो वाकया एक साइड पे रखें, अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा जहाद है जो एक माँ को औलाद और शोहर से अलग कर देता है? क्या कोई दुनिया में ऐसा जहाद है कि आपकी फैमिली को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दे? अगर तो ये जहाद है, अगर तो ये दीन है, तो मैं कहती हूँ जानवर आपसे भले हैं, कि जो जानवर है ना, अगर आप छोटे से छोटे जानवर को पकड़े ना तो वो बड़े से बड़े जानवर से भिड़ जाता है अपना बच्चा बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए। वो बिना मजहब के बेहतर है चले आप आपकी लोगों के, अगर ये काफी मसला है। काफी लंबी तकरीर हो गई है, आप बात सुन लेना, आप दूसरे की भी बात सुनने की कोशिश किया करें। बात ये है कि वो दरखास्त किसने दी, किसने उसको मजबूर किया था? उसके माँ बाप ने लड़की के? किसने मजबूर किया उसको? आप में से किसी दोस्त को समझ आई है मैंने क्या कहानी सुनाई, क्या वाकया सुनाया है? अब जब इनको बुनियादी तौर पे बात ही पूरी समझ नहीं आपको आई मैं क्या कह रही हूँ, तो आप क्या बात नहीं, मुझे थोड़ा हाथ होता रखे ना, कि मतलब मुताबिक आप भी थोड़ा सा
आसान अल्फाज में उनको बताएं, वो इतना डीप नहीं जा पा रहे। मैं सिंपल बता रही हूँ कि उनके वालिदैन ने हजूर को खत लिखा था और उनकी बाकायदा जो अहकामात आए थे उनके मुताबिक उन्होंने घर छोड़ा था, और उनको ये उनकी बीच में शामिल थे, उनकी अहकामात की जो हुक्म उनकी जो उन्होंने किया उसके मुताबिक, तभी तो मुजाहिदा का लक़ब मिला, वरना मुजाहिदा तो निदा भी बनती है, उसको कह के दिखाएं मजा। जी अब समझ आइए ख्वाजा भाई। जी 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 बहन, क्या क्या फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं? मैं आपकी इसी बात की जवाब दे रही हूँ जो आप कह रहे थे कि बेटियों के ऊपर प्रेशर डाल के घर बर्बाद भी किए जमात ने, घर आबाद भी किए अपनी मर्जी जमात ने के। आप नहीं, बात सुने, जमात ने उनकी नहीं, जमात ने उनके अहकामात ने ने ये कहा हुआ है, सुनो तो सही बहन, जमात ने ये कहा हुआ है कि अपनी बेटियां गैरमदियों में ना दें, बाद में फसाद पड़ता है, ये कहा हुआ है जमात तो ने। फिर फसाद और जिन लड़कियों के घर बने हुए थे उनको अलग करा के जो फसाद किए उसका जिम्मेदार कौन है? और जिन लड़कियों ने हाँ, जाहिदा की मिसाल सामने है, वो खुशबाश अपने घर में है, जिसको उसको जमात से क्यों निकाला? ये तो जिंदा मिसाल है ना ग्रुप में। नहीं, जमात में क्यों निकाला? उसने जमात की बात मानने से इनकार किया। कौन सी बात? उसके वालिदैन की बात की ना उसने, उसके वालिदैन ने अरेंज मैरिज की, उसने बताया नहीं। कौन सी जमात की बात? उसके वालिदैन ने उसकी मर्जी से किया ना, उसने कहीं नहीं हम बताते हैं ख्वाजा भाई, आपको बताते हैं मुझे जो निकाला है। जब जमात ने ये कहा है कि अपनी बच्चियां गैरमदियों में मत दें, तो उनकी बात माननी है कि नहीं जमात की? तो जो लड़के आपके भागे जा रहे हैं, बाहर की लड़कियां ला के जो अपनी लड़कियों को रोंद रहे हैं, उनकी माननी है कि तो नहीं? उनको इंसान बनाना है कि नहीं? आपने मेरी बात सुने, वो जो औरत होती है ना, जो बेटी होती है ना, वो उसके ऊपर गैर लोग जो गैर अहमदी लोग हैं वो मजबूर करते हैं उनको। गलत बात है आपकी, जो गैर अहमदियों में लड़कियां गई हैं वो ज्यादा खुश हैं। मुझे भी पता है, मेरे खानदान की गलत बात मत करें, गलत बात कर रहे हैं आप बिल्कुल। मेरे खानदान की 3-4 लड़कियां गैर अहमदियों में और बहुत खुश हैं। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सही कह रही हैं फाफ, कोई मजबूर नहीं करता आपको। तो आप झूठ को अपने झूठ को बताने के लिए गैर अहमदियों के ऊपर बात चढ़ा रहे हैं, जबकि आपकी अहमदियों में आई हुई गैर अहमदी लड़कियों की मैं मिसाल देती हूँ, वो कितनी खबर हुई हैं, मेरे घर में वो भी मिसालें हैं। इन्होंने ये बात जो की पता नहीं, नीचे घर से बागी वाली बात, इन्होंने ये घर से बागी वाली बात हमें लगाई है, मुझे और अफाफ को। ये इन्होंने यहाँ पे बात करने का मकसद ही इनका ये था कि वो हमें ये बात लगाए हैं और हमारे ऊपर इल्जाम कर देंगे। हो सकता है मैं भागी हूँ। तो आपने अब मेरी बात सुने, आपने शादियां की अहले सुन्नत या किसी और फिरके के लोगों से? इसलिए यहाँ पे पांच बहनें बैठी हुई हैं, पांचों में से जो भागती हैं। पहले मुझे ये बताएं, ये आपकी कौन सी शरीयत है जो आपको कहती है कि दूसरे फिरकों में शादी नहीं करनी? इस्लामी शरीयत तो कहती है। इसलिए पहले प्यारी बहन पहले शादियां होती थी, इन जो मुसलमान थे दूसरे अहले सुन्नत वाले, उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं अहमदी बच्चियों के ऊपर। इस वजह से हमारे जो गलत कह रही हैं, गलत बात कह रही हैं आप। हम नहीं झूठ बोल रहे हैं। हमारे घरों में वाकयात हैं, हम भी औरतें हैं, आप हमें बताएंगे झूठ क्या है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं। नहीं, हम भागते नहीं, हम चलती हैं सिर्फ। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने किसी गैर जमात से शादी की है? कि आपको पर्सनल बात कोई बताए? आपने बहरहाल हमें ये लगाया है ना, मैं अभी आपको आपका यहाँ नीचे लिखने का मकसद क्या था? आपका यहाँ पे ये बात यही मकसद का मकसद क्या था? जायदा आपको पता नहीं, आप उसको टक्कर ले रही हैं। ये ख्वाजा साहब है, ये अभी पता लगा देंगे। बाजी ठहर जाए, ख्वाजा साहब मान गए। ये आपका अभी यही कमेंट किया था, मान गए ख्वाजा साहब, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं तो मानता हूँ जो दूसरे गैर जमात से शादियां कर लेती है उनका अखराज होता है।
अच्छा अभी मैं सवाल इनका कर भी लूं पता जी, करें। सफिया सिस्टर मैं एक सवाल कर लूं प्लीज। जी जी, हम सबके भाई अच्छा हैं। जी, हाँ जी ख्वाजा साहब, मैंने आपसे एक मासूमाना सवाल करना है। मैंने कहना है कि जी अभी तो जो खलीफा मसरूर साहब हैं वो खुद इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब वो मिर्जा साहब के खिलाफ जाके ये इजाजत दे रहे हैं, मतलब वो मिर्जा साहब के बनाए हुए असूलों को तोड़ के इजाजत दे रहे हैं। अभी तो मेरे खानदान में 2 नहीं लड़कियां, जब तक एक मिनट सवाल मुकम्मल करने दें, थोड़ा सा हौसला रखें, जी क्योंकि जो जो ओके आप कहते ओके हैं ना, हाँ जी थोड़ा मैं हौसला रखें। आपको आप अच्छी मुझे तरह पता जानता हूँ, ऐसी फिक्र ना करें। बिल्कुल नहीं, हाँ जी मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपको भी जर्मनी जान की लिया। आप जर्मनी के सदर हैं हाँ आप, जी देखें। अच्छा मैं बिल्कुल अच्छी तरह शजरा नसब आपका निकाल हाँ लूंगी। हाँ मैंने आपसे ये सवाल, आपको सांस चढ़ गया है ख्वाजा साहब, थोड़ा सा पानी पी लें, नहीं म्यूट लगा लें, नहीं मुझे म्यूट लगा कोई लें। सांस नहीं चलें, चढ़ा, मेरा सवाल आप मुकम्मल फिक्र होने ना दें, ठीक है। करें। मैंने आपको ये कहा है, पूछा है जी, जी मैंने आपको ये पूछा है ख्वाजा साहब, मौदबाना तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, कि मिर्जा जो मसरूर साहब हैं वो अब बाकायदा खवातीन को इजाजत देते हैं गैर जमात से शादी करने के लिए। मेरे खानदान में खुद 2 खवातीन ने, जिनका जमात में रिश्ता नहीं हो रहा था और वो 30+ हो गई थी, तो उन्होंने इजाजत दी। एक तो यंग भी थी और एक 30+ हो गई थी। उन्होंने बाकायदा लेटर लिख के उनको इजाजत दी है कि आप जो है वो रिश्ता कर लें। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ। इसका मतलब जो मसरूर साहब है, खलीफा वक्त हैं, वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की तालीमात के खिलाफ चले गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि वो अब बात जो ये इजाजत है दे रहे हैं, एक मिनट रुकें जी, एक लास्ट जुमला, वो इजाजत जो दे रहे हैं वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के खिलाफ जो है रूल बना के इजाजत दे रहे हैं। इस पे आपका क्या पे नजरिया जी? एक बात मैं आपकी ऐड कर दूं मुझे बीच में। कनाडा में आप आए, कनाडा में जी आपने सिस्टर आप ऐड करो। कहीं भी किसी भी नौजवान लड़की ने आज या लड़के ने शादी करनी है ना, किसी भी जगह, उसका असूल ये है कि आप 2 साल के चंदे दें और बैत फार्म पे साइन करवाएं। भले वो बंदा दोबारा मस्जिद का, जमात का मुंह ना देखे, बस साइन करवा दें उसके और 2 साल के चंदे दिलवा दें, और उसके बाद आप जिस मर्जी उल्लू के पट्टे से शादी करें। आई डैम, आपको कोई नहीं पूछेगा। स्वीडन में 2 को ज्यादा ये मिली हुई है ना दादा दादी। बात, जी ये ख्वाजा हुई साहब ना बताएं बात। जी कि ये आप खलीफा वक्त ये आप खिलाफ जा रहे हैं जी ये मिर्जा आप साहब के। ठीक कह रही हैं, ये आप ठीक कह रही हैं कि बैत करने को कहते हैं। अगर तो वो सच्चे दिल से बैत करता है तो ठीक है, अगर अंदर सच्चे दिल उसके की क्या बात है नहीं वो की। किसी को नहीं ना पता। ना 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 ना, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं सच्चे दिल की बात कर रहा हूँ। बैत फार्म पे साइन तो मिर्जा मसरूर ने नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं? आप बैत फार्म पे क्या साइन को सच्चा दिल कैसे कह दिया? कैसे क्या सच्चा मतलब, दिल मैं हो गया? समझा नहीं आपकी बात। बैत फार्म पे साइन करना सच्चा दिल कैसे हो गया? ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन है कि आप उस गैंग का हिस्सा हैं। हाँ तो वो उस गैंग में आएंगे तो तभी शादी होगी ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो लड़की ऐसे नहीं हो सकता। आप जो गैंग से इसको बाहर कहते हैं- निकलेगा वो इसको उसको कहते आजाद हैं, है। अच्छा इसको कहते हैं बदमाशी, दूसरे अल्फाज में। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, आप जो मर्जी नाम दें, इसलिए आप- मैं आपको बताती हूँ बदमाशी इसलिए है। आपको आपका इखराज हुआ है, मुझे ये बताएं। भाई पहली बात है कि आप जाती तौर पे क्यों आ रहे हैं? मैंने एक भी बात अभी तक आपकी नहीं, बात नहीं आप सिस्टर, इनको ना जातियात पे आने का बहुत हाँ, मुझे शौक पता है। है, इन्होंने मुझे पता है। मुझसे भी इन्होंने यही सवाल नहीं, पूछा था। आप जमात के एक खिलाफ भी बात सवाल- कर रही हैं। मेरा आपको हक किसने करवा लेंगे। हक दिया है? बिल्कुल आप दिया मुझे मैंने। ये बताएं, आपको कैसे निकाला? क्यों बताऊं मैं आपको? अब मुझे क्यों बताना निकाला? पड़ेगा मैं बताती हूँ जी, नहीं अफाफ सिस्टर, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ क्या जी आपसे कैसे। क्या गलत काम हुआ है? अच्छा, आपसे पहले क्या एक बात गलत बताओ। काम हुआ है ये आप जिसकी इनके वजह दिमाग से देखे, आपको निकाला गया है? दिमाग देखे, निदा की ऑडियो सुनी, दिखाएं उसका खराज का सर्टिफिकेट जरा मुझे। नसीर शाह का दिखाएं। ये गंदी ऑडियो सुनने के बाद भी सुनाते कोई हैं, सुनाते सर्टिफिकेट नहीं इनको। मिलेगा। लेकिन जैसे मुझे हमारे साथ उसका- बैठ के सुने। उसका इखराज हो चुका है। झूठ मत बोले, खुदा का खौफ करें। अब वो आपको नहीं खुदा पता, आपका है कोई नहीं। आपको नहीं पता जो लंदन में जो MTA का था ना कंट्रोलर, उसको निकाल दिया गया। वो शैंडी शाह उसने गलत है, जमात से नहीं, ओहदे शैंडी शाह। दो डिफरेंट फर्क है। नहीं, निकाल तो गया ना, गलत बंदे को हम रखते ही नहीं है।
हाँ ओहदे हमारे से पास निकाल कोई देते हैं। गलत बंदे की जगह ही नहीं है हमारे पास, अल्लाह के फजल से। हम तो नेक फितरत लोगों को लेते हैं, जिसकी फितरत खराब हो जाए वो जा भी सकता है, फिर तो सारी जमात आने का खाली होनी रास्ता चाहिए। खुला भी है और जाने का रास्ता भी खुला है। मिर्जा लुकमान तो खिलाफत कमेटी में बैठा है जनाब जी, शहबाकी भी हाँ, तो तमाम वो आपके जब उसकी लौंडेबाज बारी आएगी, बैठे हैं, तमाम जब लौंडेबाज। खिलाफत उसकी कमेटी जिसने खलीफा चुना है जब उसको निकालेंगे। जब जी जब उसकी बारी आएगी, जब उसकी बारी आएगी वो भी निकलेगा, ख्वाजा साहब टेंशन नहीं लेनी, गंद हम अपने पास नहीं रखते। आपकी बारी आई थी तो आप भी तो निकले थे ना इस्लाम से। बहन एक मिनट जरा मौका दीजिएगा, एक मिनट मौका दीजिएगा। मुझे लगा इन्होंने दिल गंदे में माफी लोग मांग ली होगी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी आवाज आ रही है, है मेरी जमात में खुशक पत्ते झड़ जाएंगे। हाँ जी, तो वो झड़ रहे हैं यार मेरी आवाज आ रही है, उनका आपकी हाँ, तो रही हजरत है आवाज। मसीह मऊद, आपकी हजरत मसीह मऊद इन फितरत से उन्होंने बहुत पेश गोई नावाकिफ की थे। थी। नो बहुत नावाकिफ वजूद थे फितरत से। उनके अच्छा पत्तों ना जी शब्दों जी पर नहीं ना आते। आपने नबूवत का दावा किया। ठहर जाइए जी, एक मिनट अगर मौका वो नबी दीजिएगा, थे, एक मिनट मौका दे दें, मौका अगर दे वो दें। नबी थे मुझे तो अल्लाह का दावा करना चाहिए उनके मुताबिक तो, लेकिन मैं नहीं मौका करूँगा। दे तो कर दो ना, क्यों ख्वाजा करूँ? साहब कर दो दावा। ना ख्वाजा साहब ख्वाजा जी, साहब भाई बैठे हैं, भाइयों से भी बात करें। भाजी एक सेकंड जरा, एक मिनट मौका दे। ख्वाजा साहब ये दसो ए जड़ी जी बीबी भाजी। फायजा मिर्जा ताहिर हाँ। साहब दी जड़ी बेटी ने मिर्जा बीबी फायजा, ये बड़े जी। नेक खातून ने ना। ये अल्लाह जानदा, मैंने नहीं पता। नहीं मेरे मुताबिक तो नेक खातून ने, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ, ਪਤਾ ਕਿ ਐਮਡੀ ਤੁਸੀਂ- ਨਾਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ख्वाजा साहब ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਆਪਕਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਹੈ ਨਾ ਨੇਕ ਨੇ। ठीक है। हाँ वो झूठ कह रहे थे सच कह रहे थे मिर्जा लुकमान के बारे में। हाँ अगर उसने गंद किया तो सही कह रहे होंगे, हमें नहीं पता, नहीं हमने नहीं देखा भाई। अच्छा मेरी गल तो सुन लो। हाँ, तुसी ये तो नहीं कह रहे बीबी फायजा का दिमाग खराब है। अगर वो कह रही है जमात का एक सिस्टम है उसमें जाके रिपोर्ट करे और नहीं उसकी गल तारी इंक्वायरी ठीक है, होगी। मेरा सवाल है नहीं, मेरा सवाल है मैं नहीं पूछा कि तरीकाकार की है, मैं नहीं पूछा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जो तुसी सुनिया ਉਹ तुसी सुनिया ना। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ख्वाजा साहब मेरी गल सुनोगे तो समझ आएगी ना जवाब की देना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ख्वाजा साहब जी सुनिए ख्वाजा साहब, मसला रिपोर्ट करे ना करे, झूठी है कि सच्ची है, नेक है कि नहीं है, उन्हें क्या की है, उन्हें गल की इल्जाम की लाया भला हुकूमत ते? या उन्हें बेहुदा इल्जाम लगाया ना ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा बेहुदा इल्जाम लाया, की इल्जाम लाया? हाँ जी जो भी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ बेहुदा की ਕਿਉਂ ਪਤਾ बेहुदा? ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बेहुदा ਹੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं मेरे ख्याल ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ बेहुदा नहीं। ਕੌਣ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੁਝ ਘਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ख्वाजा तारक साहब ਇੰਨੇ ਬਾਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ ਹੋਏ,
ਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਢਾਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਿਓ। ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਮੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? नहीं हजरत लुकमान अय्यदुल्लाह बिन नसर अजीज क्यों नहीं कह रहे ਤੁਸੀਂ? अय्यदुल्लाह बिन नसर अजीज बिल्कुल। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜੋ। ਚੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਧੌਣ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ और जेड़ी जुड़ी ना कहो मिर्जा ताहिर अहमद साहब, गल सुनो, मिर्जा ताहिर अहमद तुसी की आंदे हो रहीमाउल्लाह, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ख्वाजा साहब मैं पिछले अद्धे घंटे तो खामोश सी कि ख्वाजा साहब अनकंफर्टेबल ना होण मेरी वजह तो, हुण मैनू थोड़ा जिहा ते मौका दिओ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਫੌਜ਼, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड, ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਹੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਰਹੀਮਾ ਰਹਿਮਾ ਤਾਲਾ, अल्लाह का खलीफा रहीमुल्लाह नहीं कहते? रहम हो उनके ऊपर। नहीं रहीमुल्लाह नहीं, रहीमुल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ। अच्छा रहमुल्लाह, अच्छा रहम रहमुल्लाह ताला गलते सुन लो, दर्जात बुलंद करे। ਹੁਣ ਸੁਣ ਦਰਜਾਤ मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफा राबे ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਦੀ ਬੈਤ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਚੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ। ਅਰੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ। नसीर ने उसको मारा नहीं है, निदा को मारा नहीं है। बाजी ठहर जाए। हाँ देखो ना, ये देखो निदा को मारा नहीं। ख्वाजा साहब गलत सुनो, उस मौलवी ते सफिया बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ, पर उन्होंने तो तशरीह की नहीं। ਹਾਂਜੀ बाजी ठहर जाए जरा, आगा बाजी ठहर जाए ना, मौका आगा याहिया साहब ने ये रीजन बताया आपको, वो चले ही गए ने, इन लाया किसी ने? भाई जब वो बताने लगते हैं रीजन, वो चले जाते हैं, उनको लो भाई जेड़ा जिसकी बैत है वो बचा हुआ है, बाकी सब किसते लूट लो। मिर्जा कमाल असूल है। वही तो मैंने कहा है, जमात का यही असूल है, जो बैत जिसकी की है उसको छोड़ दो, बाकी सबको अन्नी पाओ। मिर्जा मसरूर ने जिस दिन अपनी बैत लोगों से ली होनी, शुक्राने का नफल अदा की होने के लो भी मैं बच गया जी। बिल्कुल मैं बच गया, बाकी अन्नी खैर है। मेरे सवाल को तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया जी।
मारे देंगे जैसे। आप ये देखें इनकी नेचर कि आप इनकी फितरत देखिए कि इनको इतनी ढिठाई से उस चीज का ये सपोर्ट करते हैं। हालांकि मेरे अपने खानदान में जिस पिछले मैंने देखी कई खवातीन है, मैं बल्कि मिसाल देती हूँ कि वो गैर अहमदी थी, उनको जब अकेली अहमदी हुई उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी, उन्होंने जब उनके वालिदैन वगैरह फोत हुए हैं पूरी प्रॉपर्टी जो उनका शेयर बनता था ना विरासत में वो ला के उनको रब्बा में दिया था। हालांकि वो नहीं मिलती थी उनके घर वाले, लेकिन उनको मिलने नहीं देते थे उनके शोहर और उनकी अगली फैमिली, क्योंकि वो गैर अहमदी हैं। उन पे जुल्म हो रहा था लेकिन पीछे वाले फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी कई मिसालें हैं। अब होती हैं एक दो वाकयात ऐसे भी जिस तरह हर जगह पे होते हैं। अब उनको बुनियाद बना के आप इंसान का बुनियादी इंसानी हक छीन लेंगे, आप ये जवाब देंगे कि शादी ना करो, क्या ये हल है कि गैर अहमदियों में ना करो? इस तरह तो आप शरीयत बदल रहे हैं इस्लाम की। इस्लाम में तो आप लोग कहते हैं अहले किताब में शादियां जायज है। ये कौन सा इस्लाम है जो आप शरीयत के ही खिलाफ हो जाओ? अपने आप बदल चुके हैं शरीयत को और फिर भी अपने आप को मुसलमान कहें तो हद दर्जा ढिठाई है ये जनाब। मजे की बात आप एंड टाइम पे देखो, पहले उन्होंने कमेंट नीचे ना उन्हीं को किया कि तो बाहर शादियां करने के ऊपर, तो उसने टारगेट किया, सारी बात है जो डिस्ग्रेस कर अपनी तरफ से उसने बिल्कुल जाहिदा को किया। मुझे बिल्कुल पता था, मैं समझ गई थी जाहिदा को इन्होंने किया। हालांकि जाहिदा की तो खुद अरेंज मैरिज हुई है, मैंने उसकी अपने पेरेंट्स ने की है वो तो, और वो रब्वा में रही भी नहीं है, रब्वा के बाहर थी। मतलब जो बंदे के साथ रिलेट ही नहीं करती कोई चीज, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं उस गंद के अंदर अपना बताने के लिए। अब यही बात इन्होंने रब्वा से निकल जाई हैं, औरतें रब्वा से निकल जाती हैं। भाई मैं खुद रब्वा से रह के आई हूँ, अब जानबूझ के ही कर रहे थे वो। अच्छा नहीं, एक चीज पुरानी ना हो जाए, आपने नोट किया है कि मैं जो चाह रहा था वो ख्वाजा साहब जो है वो थोड़ा बहुत दे भी गए, लेकिन थोड़ा भी बचत हो गई। ख्वाजा साहब को जब कहा कि मिर्जा लुकमान पे जो इल्जाम लगाया वो कैसा है, उन्होंने कहा बेहुदा इल्जाम है। साहब कहा है, आप ये भी देखें लुकमान को जो मुजरिम को भी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो ये एक अहमदी जो जमात अहमदिया में है ना, मुखलिस अहमदी जिनको मैं कहूंगा, जिनको मैं बल्कि माजरत के साथ अल्फाज यूज कर रहा हूँ, जिनको मैं फुद्दू अहमदी कहता हूँ, ये यकीन करे कि इन लोगों के लिए वो अब भी वलीउल्लाह है, वो अब भी वलीउल्लाह है। ये लुकमान शाही आए हैं, मेरे भाई हैं, ये वो लुकमान नहीं है। ध्यान से इनको ही ना रोक देना आप लोग। क्यों कर करें, हम तो लुकमान हर लुकमान हमें वैसी आती है उसके अंदर से। ये शरीफ लुकमान है, इनको ना कुछ कहना प्लीज। यार ये लड़कियां ये खवातीन बड़ी मिर्जा लुकमान दा जलिया लुकमान सही ने भी फूक के पिए। सही बात है, इसलिए कोई लुकमान आए अपना पहले तारुफ करवा दे कि मैं वो नहीं हूँ। हाँ यार ये बड़ी डेंजरस खवातीन है भाई, ये अफाफ, जायदा, मुजाहिदा ऑफ इस्लाम, कौसर साहिबा, ओए होए बड़ी डेंजरस है भाई। अच्छा मैं वो पे लगाऊं पहला पार्ट, वो मैंने जान के छोड़ दिया था आखिर के लिए, बड़ा तकलीफ दे है जी। लगाए जी। भाई अच्छा कोफ्त नहीं बना रहे निदा क्या? तो बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, हाँ वही करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? Give me a hug? बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, हाँ वही करते रहते हैं। नहीं मुझे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा है। नहीं 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 मेरा दिल नहीं पिघल रहा। क्योंकि तुम्हें वो पता चल गया। हाँ मुझे कराहत आ रही है। किस बात से कराहत आ रही है? अपनी अम्मी से कराहत आ रही है। मुझे अम्मी से कराहत है। नहीं कर रही क्लीन। क्या? अम्मी हाइजीनिक नहीं है। वो हाइजीनिक नहीं, अम्मी हाइजीनिक नहीं है। यार क्या है? What is your standard? What standard? Your Ammi is a bad standard? As far as cleanliness is concerned, 100%. As far as what is concerned? Cleanliness. Is she dirty? मैं तो शायद खुद कमरे में रह के तलावे से मुश्किल लग रहा है। वो अब गंदी हो गई, वह पहले नहीं थी। वो तो आप लापरवाही करती है। She was extremely exquisite about everything.
दवाइयाँ कितनी दफा क्या कितनी दफा उनके साथ कितनी दफा की है? हाँ, और क्या नहीं, कितनी दफा लुट्टी डाली है। लुट्टी डालनी होती है और नहीं, क्या कितनी दफा किया? यार मैंने कोई हिसाब किताब नहीं रखा हुआ। अच्छा Has she actually said anything or? No, but she keeps on saying she doesn't want me to talk to you. She doesn't what? वो उनको हो जाए कि कुछ है या हो जाएगा नहीं ना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत मैंने कभी फेस करती हूँ कि कुछ हो जाएगा। तो आप ऑकवर्ड नहीं हो रहे? मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ फिर? अब मैं तो बहुत ऑकवर्ड हो रहा हूँ। हम भी ऑकवर्ड हो रहे मेरे से क्यों किया है? मैंने किए नहीं, मेरे से प्यार क्यों किया है? हाँ? बहुत तंग करती हूँ कसम से। बहुत तंग करती मम्मी से मोहब्बत की थी? मोहब्बत जैसे आप दावा करते हैं कि आप मेरे से करते हैं। मोहब्बत तो प्यार तो हर अल्लाह के मखलूक से करते हो, करना चाहिए। हाँ ठीक है, मगर जो दावा मेरे साथ करते हैं वो सॉरी ये कुछ नहीं। मैं बात कर रही हूँ फोन, और कभी नहीं आपसे बोल रही। मेरा क्या कर रही हो? नहीं आजमाने में जे। 1 मिनट पानी तो पीने दो। ओह गॉड, शुक्र है होश आई। अच्छा लिसन, मेरे फोन नहीं बंद करने देना। मैंने कब कहा? मुझे लगता है आपने मुझे फूल बनाया है। मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया? अच्छा कुछ नहीं किया, सारा मैंने किया। You did not need to know about Faiza. But were you emotionally invested? Not really, no. I don't think so. David, pause करें। Maybe. एक तो अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे। मैं यकीन करे, मैं उस लड़की को ना मैं कसूर नहीं दे रहा, ये निज़ाम ही इस कदर भेड़िया निज़ाम है। आप यकीन करें कि वो देखे उसके साथ, वो कह रही मुझे आपने बेवकूफ़ बनाया, आप मेरे साथ ये, वो पहले बीबी फायजा के साथ लगा रहा है, बाद में उसने इससे भी बदला लिया है। और ये जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये खातून जो बोल रही हैं ये मिर्जा ताहिर अहमद खलीफा राबे उनकी नवासी हैं जनाब। मिर्जा नासिर अहमद की पोती है, मिर्जा लुकमान की बेटी है, जिस मिर्जा लुकमान ने इसी अपनी बेटी के साथ उसने 5 साल की जब ये थी तो ज़ना किया था। ये मिर्जा गुलाम अहमद साहब की आगे से नस्ल है। क्या बनी मिर्जा गुलाम अहमद साहब की? परपोती कह ले, परपोती मिर्जा गुलाम अहमद साहब की, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की परपोती। और बीबी फायजा जो है ये बशीरुद्दीन महमूद साहब की पोती है, मिर्जा गुलाम अहमद साहब की परपोती है बीबी फायजा। मिर्जा ताहिर अहमद की बेटी है, मिर्जा नासिर अहमद की बहू है। ये आपके सामने दोस्तों, इसलिए अपना किबला दुरुस्त कर ले और समझें अल्लाह की पनाह है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं अकेले कभी भी ये पूरी नहीं सुन सकती थी, मैंने कई दफा कोशिश भी की है, लेकिन आज ये सब चला। ये शेडी शाह है जी, एमटीए का चेयरमैन, ये जिसकी फोटो पहले मैंने लगाई हुई थी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा ही नबूता आज है। ये बंदा, आप अंदाजा कर ले कि इस खानदान को आप जो मुरीद है ना, वो गुजरते हुए आंखें भी ऊपर करके नहीं देखते होंगे। जब इनकी औरतें आती होंगी तो आप कहेंगे बीबियां आ गई, बीबियां आ गई, बीबियां, ऐसे ही कहते होंगे आप लोग, पीछे पीछे हो जाओ, बीबियां आ गई। ये हाल है अंदर से, क्योंकि आप लोग मुरीद हैं। जो अंदर से जानता है ना, उसका भरम भुरम कोई नहीं है उसके सर पे, उसको किसी चीज की ठंड नहीं है, उसको नहीं परवाह कि बीबियां आ गई। वो तो कपड़ों के अंदर से देख चुका सब कुछ, उसको कोई परवाह नहीं है, उसके लिए कोई मिर्जा ताहिर तो नहीं। और आप बेशर्मी का लेवल देखिए कि इस ऑडियो में आगे जाके बहन एक जगह आएगी जहां पर ये बंदा बोलेगा कि तुम्हारी माँ के साथ मुझे
ایک زیادہ یہ بھی مجھے تھا کہ شی از دا ڈاٹر آف خلیفہ رابع. زیادہ مجھے یہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ لگاؤ کہ شی از دا ڈاٹر آف خلیفہ رابع. وہ عقیدت میں بھی ہے جناب کہ وہ خلیفہ رابع کی ڈاٹر ہے. اور وہ کہہ رہا ناٹ ریئلی, مطلب مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا, وہ ناٹ ریئلی. تو اللہ رحم کرے. ہائیجن کی باتیں یہ واقعی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ذہنی طور پر ندا کا کیا حال ہوگا. لائک وہ اپنی ماں کی ہائیجینک گفتگو دیکھتے ہیں آپ. Very beginning, there was a feeling of obviously that she's Khalifa Rabi's daughter and that kind of. ہاں تو جو آپ نے مجھے یہ بکواس کی تھی, I can hold my head up high and below Khalifa Rabi, آپ تو کیسے سر گئے. You're such a liar. I swear. Very beginning, there was a feeling of obviously that she's Khalifa Rabi's daughter and that kind of. ہاں تو جو آپ نے مجھے یہ بکواس کی تھی, I can hold my head up high and below Khalifa Rabi, آپ تو کیسے سر گئے. You're such a liar. I swear to God. میں سینہ تان کے سر اونچا کر کے خلیفہ رابع کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے. واہ. نہیں, اور جیو الٹا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ سر اٹھاتے نہیں تھے ان کے سامنے, اور اندر سے آپ یہ سلپ ہو گئے. واقعی میں مجاہدہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو سننا حوصلہ ہے, لیکن یہ حوصلہ کرنا پڑتا ہے. نہیں وہ نہیں, وہ جھوٹ تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت she needed help. Okay? Sexual help. Huh? Sexual help. یہ نہیں آپ یہاں سے اس بات کو سمجھیں. جب یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت شی نیڈ ہیلپ, یہ بات درست ہے. آپ اس چیز کو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ رائٹ ہے, لیکن اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے. اس کو پتا تھا کہ وہ وکٹم ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کی فزیکل نیڈ بھی ہے, نفسیاتی, کیونکہ ایک عورت اتنے زمانے سے بغیر, بچے تو ہیں لیکن شوہر تو نہیں ہے اس کے پاس, نہ اس کے پاس شوہر کا پیار ہے, نہ توجہ ہے, نہ اس کے پاس ساتھ ہے. وہ تو باپ کے گھر رہ رہی ہے, بچے لے کے پال رہی ہے, کھوتا بنی ہوئی ہے, اور اس کی شادی بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی, زبردستی کرائی گئی, جو بھی اس کے معاملات تھے. اب اب آپ بتائیں, فزیکل نیڈ تو بہرحال ہے نا اس کی نوجوانی میں اس عورت کی, اور یہ بات بھاگ چکا ہے. ہاں بالکل vulnerable ہے, ایگزیکٹلی. اس کو پتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت تھی, اس نے وہاں پہ اس کا شکار بنایا ہے, اس کو مطلب ضرورت کہہ رہا ہے کہ اس کی شی نیڈ ہیلپ. مطلب سب سے گندا جو پریڈیٹر ہوتا ہے نا جی, وہ خاص طور کے اوپر یہ ایک آپ کی سائیکی ہے. آپ جانوروں کی سائیکی دیکھ لیں. کئی جانور جو ہوتے ہیں وہ حملہ تب کرتے ہیں جب اگلا ونریبل ایک دم ہو جاتا ہے, ان کے سامنے گر جاتا ہے یا ان کے پاؤں چلتا ہے, تو جانور اس ٹائم حملہ, پالتو جانور بھی حملہ کر دیتا ہے. تو یہ پریڈیٹرز کی سائیکی ہوتی ہے. یہ جو ماس نوچنے والے درندے ہوتے ہیں نا, یہ جب عورت ونریبل ہوتی ہے, دکھ میں ہوتی ہے, کوئی بھی ٹکڑا ہو, کوئی مجبوری میں ہیلپ کی ضرورت میں آئے, اس ٹائم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ نوچتے ہیں. اور یہ نظام میں اور ہو کیا رہا ہے, کہ مربی کیا کر رہے ہیں, مربی بھی تو یہی کرتے ہیں. جب قضاء میں کیس جاتا ہے, ان کی عصمتیں تب رولتی ہے نا. مجھے بتائیں ملیشیا کے ساتھ فیضان کیا کر رہا ہے, ملیشیا والوں کے ساتھ یہی کر رہا ہے. وہ مجبور ہے, ان کی عزتیں رول رہا ہے پکڑ کے. نظام کا نام بس الہی نظام دے دیا, اللہ معاف کرے. کرے جی بہن پلے کرے. She needed emotional help and she needed. But then that's what you're doing to me. کل کو کہہ دیں گے ہاں ایک نیتا بھی تھی کسی زمانے میں. اچھا, can we not talk on this topic for a minute? میں وہ سوشل میڈیا کی بات کرنے لگا تھا کہ میں نے اب دیکھو this thing I've got somebody prepared and ready for it. وہ actually he's a social media geek, okay? He's in America. And he has a network there, and he's extremely 100% confidential. مطلب ایسے ہی سمجھ لو جیسے is me in terms of confidentiality and in terms of confidentiality and in terms of sincerity to the cause, right? Does he know what's happened to me? Yes. What does he say? Well, obviously he is extremely upset,
He is extremely disillusioned with the whole thing, with the system, and with especially with Khalifa Saleh's family. I mean, he knew a lot about the family because he is from. आदमी आपकी उम्र के है? No, he's a lot younger than me. Not younger in the sense that I think he's in 50s. हाँ, वो महमूद शाह जितना है। पता नहीं किसने जीतना है, अच्छा वो उसके साथ क्यों? मैं बहुत सैड हो गई हूँ। अच्छा, मैं रो रो के सोऊंगी। मैं मारूंगा, आप बात सुनो। नहीं, आपने कल ही मुझे वादा किया था कि मुझे कभी नहीं हर्ट किया सुबह। तो मैंने कब किया हर्ट? तुम जबरदस्ती हर्ट हुई है। नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद नसीर शाह कह रहे होगा हाँ मैंने पहली बार अपनी बच्ची से नहीं किया। तुम्हें हर्ट नहीं किया, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें हर्ट किया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ले ली, ये मैंने आपको देख लिया। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी? हाँ, मैं तो हर बात में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं समझती थी जो आप मेरे लिए फील करते हैं आपने किसी के लिए। यार मैं जो बात कर रहा था तुमने आधी रास्ते में मुझे। नहीं, मैंने सुननी ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। That guy needs to get in touch with you. I'm not talking to him. Okay. Right. Who is this guy? जब आप लोग मुझे ट्रैप कर रहे हो, मैं ज़लील हूँ कल को। अल्लाह ना करे यार। तुम्हारे मुझ में ट्रस्ट का इतना लेवल है? अब इतना हो गया? Since when? ये इस लम्हे में क्या हुआ? मैं बस नहीं, फिर मैं रोऊंगी, फिर आप कहेंगे ड्रामा कर रही है। चुप, please listen to me. Things which have gone in the past और मैं भी पास्ट का हिस्सा बन सकती हूँ, मैंने नहीं बनना। देखो ये तो मैं गुंजाइश ही नहीं रखती इतना। You knew that I had relationships with various people, okay? You knew that. That I don't care about. Absolutely. That I married. अच्छा, अब अगर खुद इकरार किया इस बंदे ने तो फिर इसकी सजा क्या होती है? ठीक है, जज़ाकल्लाह ज़ाहिदा, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। That is zero to me. Right. So this was just one of them. नहीं, मगर आप 5 साल बाद के दिन कभी लड़की आपकी उस वक्त जो नई रॉन्डेवू होगी वो कहेगी हाँ शुरू में बड़ा मुझे उससे प्यार था मगर फिर no I don't think I loved her. ये होगा ना मिता का अंजाम। मेरे पट्टों में दर्द होने लगा। मिता का अंजाम यही होगा ना? मिता का अंजाम ये नहीं होगा। मिता का अंजाम look, oh God. यार मैंने आपके पट्टे तोड़ने आप do anything else now, okay? मैंने आपको no, I don't care about the bloody physical side of things. I've always said this to you. You can have relations with whoever you want. I don't care. I care about our emotional commitment to each other. Hello? हाँ मैं सुन रहा हूँ। So what was that a lie? अच्छा नहीं, आज आपने मेरे नखरे बर्दाश्त करने होंगे जैसे डॉक्टर ज़हीर करते थे। मैं वो नहीं। Like डॉक्टर ज़हीर? नहीं, बस मैंने आपको Like डॉक्टर ज़हीर में नखरे दर्द? सही लॉजिक करना भाई। डॉक्टर ज़हीर कौन है? डॉक्टर ज़हीर का तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे एक बात कहूंगा यार, ना मुंह ना मत्था, कोई मतलब इसको बैठे हुए कोई फ्री में चपेट भी मार के ना गुजरे बेगैरत के नस्ल को। आप अंदाजा करें कि किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे खेल रहा है उसके साथ, है कैसे शोखा होके इस टाइम लगा हुआ है, इधर कभी गड़ाइयाँ ले रहा है, कभी डिकार मार रहा है, कभी पानी पी रहा है, और वो सिर्फ क्या कि इमोशनल अटैचमेंट, मतलब सारी बात है इमोशनली प्रेडेटर है वो, उसको पहुंच के इमोशनली इसने कर के सारा कुछ जो है बगैरती की है और देखो एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन ये तो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात थे। वो कहते हाँ जी, हाँ जी, वो तो खुल कर रहा है ना, वो तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, इसका तो एक खराज तो क्या इसको बाजी इधर सारे अहमदियों ने गवाहियां दी हैं कि ये शराब पी के आ जाता था फंक्शनों के ऊपर, शराब खुली शराब पी के आता था ये। उसका क्या बिगाड़ा भाई? बिगाड़ना किसने मुझे बताए ना, कॉम्प्रोमाइज्ड है सारे, इसका करना किसी ने क्या है, सारे तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या अगर ये काम खुलेआम कर रहा है तो बाकियों का राज इसके पास नहीं होंगे? अगर ये यहां तक इसकी अप्रोच है, खलीफा
मिर्जा ताहिर की बेटी नवासी और इधर घर में, तो क्या मिर्जा मसरूर साहब के घर में एंटर नहीं होगा ये कहीं पर? ये भी एक बात सोचे दूसरे एंगल से कि मिर्जा ताहिर अहमद बड़े बाबंगे बाला कहते थे कि खलीफा जो है ना वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। मैं तो दूर से देख लेता हूँ, उनको उड़ती चिड़िया के पर तो नजर आ गए खलीफा वक्त को। अपने घर में अपनी नवासी और बेटी का ये हाल होता नजर नहीं आया। अपने बगल में बैठा ये जो दरिंदा है ये नजर नहीं आया। करीब की नजर कमजोर थी उनके मौजूदगी में ये वाक़यात हुए। और फिर ये बड़े आराम से, जिस तरह अभी ये जो साहब गुजरे थे सदर जमात, ये कह रहे थे हम अपने साथ नहीं इनको रखते, हमने ओहदे से निकाल दिया है। क्या ओहदे से निकाल देना इसका हल है? इसका मतलब है हम उनके साथ नहीं रखते। मतलब आप जुर्म को पलने देते हैं, जब बिल्कुल दुनिया के सामने आ जाता है चढ़ते सूरज की तरह वो जुर्म कि आपसे छुपाया ना जाए, तो आप उसको डिसऑन करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसकी परवरिश आप लोगों ने अपने घरानों में की है इस जुर्म की? उसका कब सद्देबाब करेंगे? क्या उसका ये तरीका कार है कि उसको डिसऑन करके साइड पे हो जाओ और अगला मुजरिम तैयार करो? और यहाँ पर जो है वो मतलब खोल के वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने उसको, तो अब तो ये कि सजा बनती है, जरूरी बनती है। एक और चीज इसने क्या सजा? संसार किया जाएगा ये क्या सजा होगी इसकी? मतलब खलीफा साहब के पास देने को है क्या? इखराज ही कर दें, ऐलान इस कर बात दें पे जो इखराज नहीं होता। नहीं, पर कम से कम ये तो कर सकते हैं कि खुतबे में नाराजगी का इजहार कर दें कि जो इसने गलत हरकत की है ये नाकाबिल कबूल है। तो अगला खुतबा कैसे देंगे ये बताएं? लेकिन यहाँ पर जो है वो निदा सच्ची साबित हो रही है। वो नसीर शाह कह रहा है कि वो जो तीसरा बंदा जिसको ये जोड़ है उसके साथ कि मेरी तरह का समझो उसको, हाँ ये भी उसने कहा मैंने पे कर दिया उसको। अब वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो पिम्प बना हुआ है, वो उसको आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो तो आगे से आगे काम चला रहा है। ये आप देख ले, उसने वो सही मिर्जा मसरूर को कहा। अभी तो और बहुत कहा, आमिर भाई लगा हुआ है। ये आमिर भाई कौन है पता है किसी को? नहीं। छोका बेटा है निदा की। आमिर भाई लगा हुआ है, वो पुप्पो का बेटा है। ये पूरा खानदान, ये देख लो अंदर अंदर क्या चल रहा है सारे का सारा। असल सबसे फैमिली की शरीफ फैमिली इस तरह बात करती है आपस में। मैं बहन चाहूंगा कि अगर आपने ये चलाया ही है ना, तो फिर एक दफा वो भी चलाए, उसको देखें। आपकी मोहब्बत अलग अपने खलीफा से, लेकिन फिर वो ऑडियो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको चलाएं। और खास तौर पे निदा जब उसमें कहती है ना कोई तो था जो क्या क्या लगा के हंसता था, मैंने अभी तक उसका नाम लोगों के सामने नहीं लिया, वो कौन था क्या क्या लगा के हंसता था जब निदा बातें बताती थी इसको ये वाली? मैंने तो सच पूछा तो हमें तो जब मना किया था ना जमात की तरफ से कि आप लोगों ने नहीं सुननी है, तो जो जितनी सुनी थी वहीं पर ड्रॉप कर दी थी वो वाली। हाँ नहीं सुनी तो मानना डोल जाए गई। जब मना हो गया तो ऊपर से तो हम मना हो गए थे। अच्छा ये थोड़ा सा रहता है पार्ट सुनते, मैं तो सुन चुकी हुई थी उस वक्त तक, लेकिन उसके बाद अगर एक दफा तो नहीं होता ना। ओके सुनते हैं। नहीं, मुझे अब डर लग रहा है कि 5 साल बाद मैं उसी जगह खड़ी होंगी। 5 साल बाद पता नहीं मैं जिंदा होऊंगा या नहीं होऊंगा। I'm an old man, okay? You're 69 and you're still having erections. You're not old.